आप समहाउ इस लाइन में आए हैं या फिर आपका इंटरेस्ट था लोगों को पढ़ना, लोगों का दिमाग जानना? Because my father is from a medical field. My mother was a nurse and my father is a retired pharmacist. Okay. So they somehow pushed me into the psychology. यूजुअली लोग साइकाइट्रिस्ट या फिजियोलॉजी मतलब साइकोलॉजिस्ट इनके पास नहीं जाते हैं। So sir, ऐसा होता है कि ये सबके अपने खुद के पर्सनल बिलीव्स हैं. So there is a very thin line between the supernatural thing and this particular disorder. शेयरिंग पासवर्ड, ट्रस्ट और टॉक्सिसिटी? Sharing password is basically a toxicity. Yes, definitely. Okay. Because so schizophrenia अगर मैं mental health के उसमें बात करूँ तो schizophrenia is basically a cancer of mental health. भूत प्रेत में मैम आप मानते हैं आप? एक पेशेंट थी तो वो बताती थी कि जो उसके घर पे जितनी भी पिक्चर्स थी या वॉल पेंटिंग्स होती थी या जैसे उसके शायद ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर्स जो वॉल पे हैंग होती थी, तो बताती थी कि वो उसको हमेशा ऐसा फील होता था दैट दे आर टॉकिंग, उनकी लिपसिंग हो रही है। तो सर वो अपने पेरेंट्स को बहुत मारती थी। तो I'm getting goosebumps. हेलो नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी। बियॉन्ड टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शुभांगी जैन। मैम एमआईटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्लस मैम काउंसलिंग के लिए भी काफ़ी सारे सेंटर्स पे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे मैम विजिट करते हैं। और मैम से हम डिस्कस करेंगे जो कि आजकल के ट्रेंड में जो चीज़ें हैं, जो आजकल चल रही हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, बिजनेसमैन की लाइफ में, हाउस वाइफ्स की लाइफ में, लेडीज की लाइफ में जो कि वर्किंग है, उनसे सब हम मैम से डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम मैम। मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपको साइकोलॉजिस्ट कैसे, आप इसी में ही आपको आना था या फिर आपका कोई और प्लान था इससे पहले, और आप समहाउ इस लाइन में आए हैं या फिर आपका इंटरेस्ट था लोगों को पढ़ना, लोगों का दिमाग जानना? जी श्योर सर, एक्चुअली व्हेन जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, मैं बहुत अपनी लाइफ एंजॉय करती थी। मैं बहुत आई हैड मेनी फ्रेंड्स and at that time I just had this plan that I want admission in Delhi University, which I got admission in BSW, which is a social work, bachelor's in social work, and then finally I got admission for psychology as well. So because my father is from a medical field. My mother was a nurse and my father is a retired pharmacist. Okay. So they somehow pushed me into the psychology, that you should go for a psychology. It's a very good field. It's a very new field. Mm-hmm. And at that time, I was completely blank that what is psychology. Mm-hmm. I was not aware of 100%. What is psychology. Mm-hmm. So it's like just my father told me and I just entered into the psychology. Mm-hmm. And then during the initial few years, I was just having a fun. I was enjoying. I was learning many new psychological terms and everything. Mm-hmm. And then during the third year, there is a compulsion of internship. Okay. Where we visit different hospitals. We have to complete our internships and everything. Mm-hmm. So that was a very turning point for my journey because I got my internship in Gangaram Hospital. Okay, very nice. Yeah. So there I saw a patient, and the very first patient I saw was the patient of dissociative disorder, okay, or which is also known as a conversion disorder. Yes. So dissociative disorder is basically, it has a multiple types. उसके बहुत सारे different types है, जैसे आपने शायद सुना होगा आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपने भूल भुलैया बहुत फेमस वो है। हाँ जी। तो उसमें बेसिकली जो पर्सन है वो अपनी खुद की ओरिजिनल पर्सनालिटी से थोड़ा दूर हो जाता है। द पर्सन इज लाइक away from the reality. Does it really happen? Yes, it really happens. Okay. Usually पहले के टाइम पे we used to say that it is a evil kind of spirit which has entered in the body. और आपने बहुत सुना होगा कि
किसी पे माता आ गई है. Hmm. So there is a very thin line between the supernatural thing and this particular disorder. Okay. So I saw this lady when I was interviewing her. She suddenly started doing expressing the symptoms. आप बता रहे हैं मैम कि आप जब इंटर्नशिप कर रहे थे तभी आया था, हाँ. इतना अर्ली स्टेज पे. Yes, yes. तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे उस चीज सर पे? उस क्योंकि टाइम वो पे बुकिश था, उससे पहले तो बुकिश होगा. yes, yes, फिर एकदम completely. से सामने. सर मैं तो डर गई थी. मैं भाग गई उस रूम से and I just left those the husband and wife in the room and I just shouted in that जो भी रूम था, counseling room, and then finally the psychiatrist came, the psychologist came, they tried to handle the situation. Okay. And like I was really scared at that moment. Mhm. But so this particular thing, when I went back to my home, I Mhm. started thinking that, you know, this is something very strange. And whatever we read in our books, whatever the theories we read, Mhm. the real scenario is really Mhm. different. Absolutely, yes. एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि यू नो पेशेंट से ज्यादा आई वाज थिंकिंग ऑफ देयर फैमिली. Okay. बिकॉज पेशेंट, बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन कंडीशन, Okay. लेकिन वहाँ पे फैमिली तो अवेयर है Mhm. कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है. फैमिली इज द वन हु फेसेस ईच एंड एवरीथिंग. Absolutely. वो उनको लेके जा रहे हैं. समटाइम्स इवन द पेशेंट्स आर वेरी अग्रेसिव. Mhm. तो वो लोग दे इवन हिट यू नो देयर फैमिली मेंबर्स एंड दे डोंट रियलाइज बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द रियलिटी. Yes, absolutely. तो सर आई लिटरली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट. Okay. तो दैट पर्टिकुलर थिंग What was the लिटरली age, ma'am, at that time? आई थिंक आई वाज 18 और समथिंग, Okay. 18-19. Okay. सो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत वो था कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था. Okay. और that was the moment when I decided कि I think I should, you know, continue in this field. Okay. And also this particular moment made me realize that हम लोग बहुत ज्यादा ग्रिपिंग करते हैं अपनी लाइफ के लिए. Yes. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ऐसी लैपटॉप है, उसके पास ऐसा फोन है. बट द रियल चैलेंजेस आर रियली वेरी डिफरेंट इन द सोसाइटी. हम उन चीजों को नहीं देखते हैं. तो अगर मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे पास शायद ऐसा लग्जरी चीज नहीं है या ऐसा नहीं है, या मेरी मम्मी मुझे डांटती हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप टाइम से घर आओ, देन आई स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यू नो ये चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं. Yes, absolutely. ये चीजों पे हमें ज्यादा वर्क करना है रादर देन सेइंग कि मेरे मम्मी पापा मुझे 7 PM के बाद घर से बाहर क्यों नहीं रहने देते. जब आपका दिमागी कंट्रोल में ना हो. एग्जैक्टली. 100%. तो सर दिस इज हाउ माय जर्नी इन साइकोलॉजी स्टार्टेड. Okay. वो एक मोमेंट था जहाँ से मैंने लिटरली साइकोलॉजी को थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट किया. एंड देन दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द वेरी सेम फील्ड. Okay, okay, okay. Yeah. Great. थैंक यू मैम पूरा आपको बताने के लिए. मेरे को तो यही सुन के लग रहा है कि एट द एज ऑफ 18-19 if you're facing this thing and still you making up your mind that okay I'll do this thing. तो मैम ये तो बड़ा commendable ही है मैम, seriously. First thing. थैंक यू. सेकेंड थिंग मैम, अब मेरे पास कुछ ऐसे ही नॉर्मली जो आजकल बातें होती हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड आजकल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस टाइम का जो पीरियड है, कहते हैं कि शायद सबसे बड़ा पेंडेमिक यही है अब, जो स्ट्रेस पेंडेमिक है, जो कि हर सिचुएशन में आजकल हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये रहेगा कि जैसे मतलब ये बहुत कॉमन है, जो मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी बैठता हूँ यहाँ पे, जब बैठते हैं हम तो ये बहुत बात डिस्कस होती है. ऐसा क्यों है मैम कि एक बिजनेस के पिनिकल पे पहुंच के एक बिजनेसमैन मतलब उस जो चीजें वो चाहता था उसने सब कुछ अचीव कर ली अपनी लाइफ में, या वो अचीव करता जा रहा है एक प्रोसेस में. तो मैम ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे जाके भी उसको ये लगता है कुछ तो खालीपन है लाइफ में, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया जो मुझे चाहिए था, जो मुझे करना था, मैं सब कुछ कर लिया, बट स्टिल देयर इज सम एक एम्प्टी स्पेस है लाइफ में जो समझ में नहीं आ रही है कि क्यों है. Yes. Please, ma'am. So, sir, this is a very common thing which we usually see in our daily lives. बहुत लोग हम ऐसे देखते हैं जो they are sitting at a very renowned positions. They have everything in their life. लेकिन एक point ऐसा आता है, this is what you mentioned, कि जहाँ पे they feel that something is missing. Yes, absolutely. Right? And even after achieving so much things in their life, they feel that there is a loneliness. So sir, basically because you know we feel कि हम लोगों ने अपनी लाइफ जो है ना वो दूसरों के साथ कंपटीशन में
इन्वेस्ट की हुई है. ओके. सो आई फील कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई सी देर आर मेनी पीपल हु आर enjoying and making videos on social media, ठीक है, and then they are enjoying, they are having fun, they don't have any kind of obligations. एक टाइम फिक्स नहीं है, सुबह आना है, शाम को आना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं. हाँ, ये होता है मैम. If people are more happy, हमें ऐसा, हाँ, right. तो मुझे लगता है कि मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने अपने लाइफ के 10-12 years पढ़ाई में इन्वेस्ट करे, उसके बाद भी आई एम अर्निंग दिस मच एंड आई एम वर्किंग फॉर समबडी एल्स, नॉट फॉर माई सेल्फ. Whereas I see people जो लोग दूसरे अपने लिए काम भी कर रहे हैं एंड दे आर enjoying their life. तो अब मुझे क्या होगा, मे बी आई फील कॉम्पिटिशन, ठीक है, मे बी वॉट आई डू इज आई से कि फॉर एग्जाम्पल मेरा तो लाइफ का गोल था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बन के लोगों को हेल्प करना है, लेकिन मुझे एक लालच आ गया कि नहीं यार, ये लोग पैसा सही कमा रहे हैं एंड दे आर हैप्पी, ठीक है, तो मे बी व्हाट आई विल फील, बहुत लोग करते हैं सर आज के टाइम पे, वो लोग अपने जॉब्स छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्ट डूइंग मेकिंग ऑल दीज वीडियोस, कुछ गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, कुछ अपने पर्सनल लाइफ के. ये तो अच्छा नहीं है कि अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं सर. तो ये मान लीजिए उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरा ड्रीम तो कुछ और था ना. Exactly. आप अननेसेसरी फॉलो कर रहे हैं उसको. मैं उसके साथ कंपटीशन में लग गई हूँ, जिसकी मैं वीडियो देख रही हूँ, राइट. सो इवन इफ लेट्स से कि मैं बहुत अच्छी ब्लॉगर बन जाती हूँ, या मैं बहुत अचीव कर लेती हूँ सोशल मीडिया पे, बट ऑब्वियसली द थिंग जो मेरे कोर में थी, दैट आई वांटेड टू हेल्प पीपल, एम आई डूइंग दैट? ओके. नो. Right? So I have compromised my own ideas, my own wishes, just to compete with somebody else. Okay. Plus, in pursuit of happiness. Yes. जो हमें लगता है मिलेगी. जी. ऐसे ही सर बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे स्ट्रगल अ लॉट, वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, थ्रू आउट डे दे वर्क सो मच. वहां पे वो लोग अपना फैमिली टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं, उनका मी टाइम नहीं होता है, उनके पास फैमिली टाइम नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली द नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस पीपल, एंड फॉर दैट दे हैव टू मीट many people, they have to travel a lot so that उनकी ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग बने. So वो अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस को जो है वो मिस कर देते हैं. एंड प्लस वॉट एवर सर, आज मैं जो भी कर रही हूँ या जो भी आज आप कर रहे हो, आप ही को वो पता होगा कि क्या एग्जैक्टली ये आप चाहते थे. या सिर्फ आपको अपने मटीरियलिस्टिक लग्जरीज को अचीव करना था, सिर्फ इसीलिए आप ये कर रहे हैं, राइट. तो सर ये क्वेश्चन एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी के दिमाग में आता है. जब हम एक स्टेज अचीव करते हैं ना, तो एवरीबडी इंट्रोस्पेक्ट्स, हर इंसान सोचता है ये मैंने अचीव कर लिया, सो नाउ व्हाट, एम आई हैप्पी, इज इट द लास्ट स्टेज व्हिच आई वांटेड टू अचीव. तो अगर वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस अगर आपके अंदर है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि वॉट एवर यू डिड, यू लिटरली डिड फॉर योर सेल्फ, जो आप हमेशा चाहते थे. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे वांटेड फ्रॉम लाइफ, एंड देन द पॉइंट कम्स जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मे बी समथिंग इज मिसिंग. ओके. सो मैम ये जो एक तरह की सैडनेस ही है, सैडनेस है सर, बिल्कुल. तो मैम ये एक तो पहली बात, ये किस स्टेज पे होती है यूजुअली, या किस एज ग्रुप पे होती है, पहली बात. और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ये यूजुअली रात को ही, जब सोने से पहले जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, शायद इस वजह से लोगों को नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उस टाइम पे हिट करती है, या आपको जब टाइम मिलता है अपने काम से तब में हिट करती है, कब होता है? जी सर, यूजुअली क्या होता है कि जैसे डे टाइम में ऑल ऑफ अस आर वेरी बिजी, there are multiple distractions, there are multiple things happening around us. ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें एक टाइम पे होती हैं, बट देन आई पे अटेंशन ऑन द थिंग्स जो मेरे लिए उस मोमेंट में इम्पोर्टेंट है. ओके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, हो सकता है एक कोई पीछे से कुछ बोल रहा हो, मे बी आई विल नॉट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि मेरे लिए अभी ये पॉडकास्ट आपके साथ बात करना इज इम्पोर्टेंट, सो आई पे अटेंशन ऑन दिस थिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई हंस रहा है,
हाँ, मुझे सिर्फ फील हुआ, लेकिन हम्म। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया बिकॉज आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड आई हैव द डिस्ट्रैक्शन. बट देन व्हाट हैपेंस इन नाइट इज हम लोग साइलेंट मोड में होते हैं, Yes, absolutely. हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं. तो यूजुअली जो हमारी थ्रू आउट डे की एक्टिविटीज जो हमने परफॉर्म की है वो हमें पता है, वो वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म. तो जो चीजें थोड़ा सा बैकग्राउंड में होती है वो हमारे पास आनी शुरू होती हैं. ओके. जो मतलब हमारी ऐसा होता है या काम की चीजें ज्यादा दिमाग में आती हैं? मतलब इसमें मैं जानना सर, चाह रहा हूँ जरूरी क्योंकि ये नहीं मेरा है. पर्सनल भी है. जी जी सर, जरूरी नहीं है कि काम की चीज ही आए. सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को ऐसा सुनाई दिया था कि शायद कोई हंसा, तो दो लोग आपस में भी हंस सकते हैं. बट मैं रात को मुझे एकदम से याद आया यार, जब व्हेन आई वाज हैविंग दिस पॉडकास्ट तो कोई तो हंस रहा था, तो मुझ पे तो नहीं हंस रहे थे. अच्छा. अरे मैंने ऐसा कुछ तो नहीं वो करा. तो मे बी आपने मुझे कितना भी अप्रिसिएशन दिया हो, लेकिन रात को आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. Okay. क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम. So is it normal or is this some psychology problem? सर इट कैन बी अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम जो क्रॉनिकली आगे बन सकती है, लेकिन अच्छा. इनिशियल स्टेज पे एवरीबडी शुड नो हाउ टू कंट्रोल इट. Okay. जैसे मान लीजिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मुझ पे चीजें जो है अफेक्ट कर रही हैं और लोगों के ओपिनियन मैटर्स फॉर मी, तो ऑब्वियसली आई ये मैम keep सारी on सोसाइटी thinking. ऐसी है जी, आज के टाइम जी. पे. मतलब probably 99-100%. सर बहुत लोग कहते हैं हाँ. मुझे आपका वो मैटर नहीं करता करता है आपका करता है. ओपिनियन, लेकिन जब मैं रात को लेटूंगी अपने हाँ. बेड पे तो मेरे लिए मैटर करेगा. 100%. तो वो एक चीज सर होती है. तो रात को यूजुअली हम लोग जब अकेले होते हैं, अपने आप में होते हैं, तो वी कीप ऑन रिकॉलिंग, या हमारे पास वो सारी चीजें आती हैं जो थोड़ी सी बैकग्राउंड में हमने फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम हमने इग्नोर की होती हैं. सो यूजुअली वी थिंक अबाउट दैट. और जब हम उन चीजों को सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, तो हम लोग सो नहीं पाते हैं, हमारे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, कॉग्निटिवली हम लोग बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज थॉट्स. तो दिस इज व्हाट इज अ वेरी रीजन फॉर हैविंग अ स्ट्रेस एंड सैडनेस. क्योंकि मैंने जितना भी कुछ अच्छा अचीव किया हो, मेरे को वो सब मेरा पीछे हो जाएगा. एक क्रिटिसिज्म इट विल कीप ऑन बॉदरिंग मी. एंड यूजुअली हम लोग क्रिटिसिज्म को ज्यादा वो देते हैं. हम लोग अपने खुद के स्किल्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं. दिस इज व्हाट नाउ वी हैव बीन ट्रेन्ड. 100%. बट मैम इसको हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस फीलिंग, मतलब इसका क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए जो बहुत इजी हो? अब यूजुअली हम जैसे मैं भी सुनता हूँ, लोगों से बात होती है कि मेडिटेशन एंड ऑल, बट फैक्ट इज दिस कि हम भी जानते हैं कितने लोग मेडिटेशन एक्चुअली करते हैं. इट टेक्स टाइम, पेशेंस, जो कि नहीं है आज सोशल मीडिया के टाइम में. टाइम पेशेंस किसी के पास भी नहीं है. तो इसमें मैम आप थोड़ा सा बताइए कि इसका एक ऐसा जो कोई नॉर्मल इंसान भी कर सके अपनी लाइफ में ना, कि जैसे ये इजी है कि ऐसे सोचना है तो इसकी जगह ये सोचना है, या उसकी जगह इसमें ऐसा कुछ हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपको इनिशियली रियलाइज होता है दैट एक ऐसा कोई थॉट आ गया है जो आपको बॉदर कर रहा है, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर अस इज टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. क्योंकि सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कैसे होता है मैम बिलीव इन योरसेल्फ? सर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सोचूं कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर यही सोच लिया कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो लोग हंस रहे थे, ठीक है, व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद यू. तो अगर मैंने ये सोचा कि ठीक है, हो सकता है वो लोग कुछ और बात पे हंस रहे हों, जरूरी नहीं है कि इफ समबडी इज लाफिंग तो वो मुझ पे ही हंस रहा है, ठीक है. तो वहां पे मैं बोलूंगी नहीं, आई फील दैट आई डिड माई वर्क वेरी नाइसली एंड वेरी गुड वे. तो मे बी वो कुछ और मैटर होगा, वो मेरे लिए नहीं होगा. सो आई थिंक दिस इज व्हाट समथिंग वी हैव टू रियलाइज. दिस गिव्स अस द मोटिवेशन टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, बिलीव इन आवर ओन स्किल्स एंड एवरीथिंग. तो ये करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है. हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट से बचना है. ओके. अगर मैंने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है और मेरे को अगर किसी ने बोल दिया कि ये ठीक है तुमने अचीव तो किया, लेकिन सी यू हैड अ सपोर्ट, आपके पास ऐसी अवेलेबिलिटी थी, आपके पास
रिसोर्सेस थे उस चीज को अचीव हम्म, करने के, तो मैं सेल्फ डाउट में आ जाऊंगी कि यानी कि ये सब मेरे एफर्ट्स से नहीं हुआ, मेरी कैपेबिलिटीज से नहीं हुआ, रादर देन सेइंग कि देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो सब कुछ होते हुए भी दे आर डूइंग नथिंग। एब्सोल्युटली इवन इफ आई Wasting. हैव रिसोर्सेस, तो मैंने एटलीस्ट उन रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरह यूज किया। तो मुझे ये समझने की जरूरत है। ओके तो ये जब रात में जब कोई इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि XYZ पर्सन के साथ हो रही है ये, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कमिंग इन हिज और हर माइंड, उनको ये सोचना चाहिए। हाँ, उनको सर मतलब ऑब्वियसली ना हम Easy है लोगों ना? ने सर डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी और बहुत अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ना ट्रेंड हो गए हैं सिर्फ नेगेटिव चीजों को सोचने के लिए और नेगेटिव देखने के लिए। यस हमने पॉजिटिविटी को देखना भी बंद कर दिया है, सुनना भी बंद कर दिया है, समझना भी बंद कर दिया है। ये शायद एनवायरनमेंट ही है। एनवायरनमेंट ऐसा है, तो इसीलिए ये आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। सो मैम जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, ये सोशल मीडिया जो है ये मतलब ये ट्रुथ ऑफ लाइफ है आज के टाइम में सबकी, आपकी मेरी सबकी लाइफ में। सो मैम ये जैसे सोशल मीडिया ये हमें बेनिफिट कर रहा है या हमें यही चीज शायद डिप्रेशन में लेके जा रही है, या हम इससे ज्यादा मतलब स्टिक हो गए हैं, हमारा एडिक्शन हो गया है? इसमें काफी सारे क्वेश्चन हमें जो बनते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जो कि अब चलते भी हैं, बहुत फ्लोट भी करते हैं कि ये हमें हेल्प जितना कर रहा है ये उससे ज्यादा शायद हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है रियलिटी से, हमें जो हमारी लाइफ में फोकस होना चाहिए उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि आजकल के टाइम पे मी टाइम का मतलब फोन पे रील देखना हो गया। सो दिस शुड बी द केस, बट ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है और ये बहुत रेगुलर हो रहा है और ये इतना सस्ते में ये नेट प्रोवाइड हो गया है। तो नाउ एवरीबडी राइट फ्रॉम समबडी वाज इन क्लास 8, बच्चा 8वीं क्लास का से लेके शायद मेरी उम्र का आदमी या मेरे से भी बड़े, जैसे मेरे फादर हैं, ही इज रिटायर्ड, उनके लिए भी मी टाइम शायद रील देखना, वीडियो, तो मैम उनके लिए तो ठीक है, बेनिफिट ही है, जो एक एज पे पहुंच गए उनके लिए तो बेनिफिट ही है। बट ये क्या है ये जो इस और इससे बचा कैसे जा सकता है? जी बहुत सिंपल चीज है जिसपे जो हमारे व्यूअर्स कर सकें, इजीली कर सकें। यस सर, बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। नहीं सर, बिल्कुल बहुत सारी चीजें लंबे के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो सर सोशल मीडिया देखिए ऐसी चीज है, कुछ भी हमारा जो भी लाइफ इवॉल्व हो रहा है और आगे भी जनरेशन टू जनरेशन होता रहेगा, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आगे और हाई टेक वाली चीजें आएंगी, एआई है सब कुछ। तो सर द प्रॉब्लम इज हर चीज जो है वो हमारी फीजिबिलिटी के लिए बनी है, उनका बर्थ ही इसलिए हुआ है ताकि वो थोड़ा लाइफ को ईज कर सके। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग अगर शादियों में अपने रिलेटिव से मिल पाते थे या हम लोग किसी मतलब फंक्शंस में मिल लिए, या हमने पर्टिकुलरली हमारी छुट्टियां हैं तो हम उनके घर विजिट करते थे, नानी के घर, हाँ, दादी के घर। तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते थे, डे टू डे लाइफ का हमारा इतना कनेक्शन नहीं होता था, तभी स्टोरीज शेयर करते थे, तभी कजन से सारी अपनी बातें बताते थे, सब कुछ शेयर करते थे। अब क्या है, सोशल मीडिया से हमारी नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी तो बहुत इजी हो गई, जो शायद इसीलिए बनी भी थी कि लोग कनेक्टेड रहे और ज्यादा सोशल बॉन्ड्स फॉर्म हो और ज्यादा सोसाइटी एज अ टुगेदरनेस ज्यादा रिफ्लेक्ट हो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसका इतना ज्यादा यूज किया या इतना ज्यादा आप बोलिए कि मिस यूज किया हमने कि अब एक वो रीजन भी बन गया है रिलेशनशिप्स खत्म होने का। एब्सोल्युटली। तो अब क्या है कि हर चीज जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। यस, इतना रिक्वायर्ड नहीं था। यस सर, हम लोग नॉर्मल वे में बोलते नहीं है कि हाँ मतलब थोड़ा दूर की रिश्तेदारी रहे तो वो लंबी निभती है ना। हमारे घर में बड़े बोलते हैं सब लोग कि नहीं दूर दूर रहो, कभी कभी मिलो, दैट इज अ गुड थिंग। अब हम रोज मिल रहे हैं, रोज छोटी छोटी बातों पे फाइट कर रहे हैं, प्लस
सोशल मीडिया जो है वो इस तरह यूज हो सकता था कि जहां से हमें वर्ल्ड के बारे में पता चल रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या चीजें हो रही है, क्या नया आ रहा है, क्या बुरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट ही डिफरेंट हो गया। बिल्कुल उस पे कोई कोई एक बाउंड्री सेट नहीं की गई है। कोई भी कुछ भी कंटेंट बना रहा है, कोई भी कुछ भी कंटेंट को डाल रहा है। देयर इज ऑल्दो यूट्यूब हो गया या कोई भी अकाउंट बनाते हैं सर, सब में बोलते हैं कि 18+ वाले ही उसको, लेकिन मतलब 7 इयर्स का बच्चा भी अकाउंट बना के बैठा है अगर, तो कोई ऐसी वो तो नहीं है कि वॉच नहीं है कि भाई ऐसा कुछ मतलब हार्डकोर सिस्टम है जहां पे उसको स्टॉप किया जा सके। तो अब तो ये वाली सब सर चीजें हैं जिसकी वजह से जो है हम लोगों ने जितनी भी हमारे लिए चीजें नई इवॉल्व हो रही हैं या टेक्नोलॉजी जो हमारे सपोर्ट के लिए आई थी, वो बेसिकली हम लोगों ने ही उसको इतना यूज कर करके हम मिस यूज की स्टेज पे आ गए हैं। एग्जैक्टली। आज आप देखिए, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव सीन कि इवन जो बच्चे 12th में हैं, ठीक है, वो सर बहुत बड़ी बड़ी डिप्रेशन की बातें करते हैं, थेरेपीज की बातें करते हैं। हाँ, तो आप ये देखिए कि मतलब मैं खुद को ये बोलूंगी कि मैंने 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद अब इतने साल टीचिंग प्लस मैंने काउंसलिंग की है, सब कुछ के बाद भी सर आई कैन नॉट से कि वॉट एवर आई एम सेइंग इज द परफेक्ट थिंग या यही बेस्ट है। इवन I feel कि today also I am at a learning stage. Yes. लेकिन सर वो लोग बता रहे हैं लोगों को, they are learners already, वो लोग बता रहे हैं डिप्रेशन ये होता है, डिप्रेशन वो होता है, they don't know कि how कितने सेंसिटिव हैं ये चीजें। Absolutely. सर लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनसे इंस्पायर होके उनकी बातों को, this is very dangerous. This is dangerous. तो फिर क्वालिफाइड लोगों में या जो बच्चे आजकल ये सब बातें कर रहे हैं, तो फिर मतलब कैसे आप उस चीज को कंट्रोल करोगे? लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन है, तो मैंने एक से पूछा कि आपको कैसे पता चला डिप्रेशन है? तो बोलते हैं कि नहीं, हमने ना उस पे देखा था, गूगल पे चेक किया था, और वो इंस्टाग्राम पे। किस एज ग्रुप के लोग बोलते हैं? बच्चे सर ये एडल्ट्स भी बोलते हैं। एडल्ट्स भी बोलते हैं? जी, वो सब वो पूरा इंस्टाग्राम वगैरह चेक करके आते हैं, वो सब वो बोलते हैं सर। वो खुद हमें टिप्स भी बता जाते हैं कि हमने ये भी कर, हाँ, कि हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, हमने वॉक भी कर लिया, हमने हॉबीज को भी ट्राई करके देख लिया। दे नो एवरीथिंग। ओके, तो उनमें कैसे डील करते हो आप, जिनको सब कुछ पता है? सर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ही उनके साथ है जिनको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, एग्जैक्टली। जिनको नहीं पता है उनके साथ हमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा पता है उनके साथ हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको ये बताना कि थोड़ा सा तो हमें आपसे ज्यादा पता है, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ, क्योंकि वो बोलते, अगर हम सर वो उनके लिए, लोगों के लिए एक सिंपल सैडनेस, आप और मैं फ्रेंड है, हमारी लड़ाई हो गई, मैं सैड नहीं हूँ, मैं डिप्रेस हो गई। अच्छा, सीधा डिप्रेशन सर, डिप्रेशन सीधा। तो बहुत ही बहुत ही इजी फॉर्म में ये टर्म्स, इतने बड़े बड़े टर्म्स यूज हो जाते हैं। सही बात है। तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। पहले लोगों को जब पता नहीं था तो वो जानने की कोशिश करते थे, वो एक्सपर्ट्स के पास जाते थे, तो उनको ज्यादा बेहतर चीजें पता चलती थी। फिर सर अगर हम बात करें, आपने जैसे शायद छोटे बच्चों के एज ग्रुप की भी बात की थी, सो आई थिंक पेरेंटिंग। अच्छा, अगर मैं बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, पेरेंटिंग। सर अगर मैं पेरेंट हूँ और मैं वर्किंग पेरेंट हूँ, तो मैं अगर अपना काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा मुझे चलो मेरे साथ थोड़ी देर आप खेलो, तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं रुको, मेरे को अभी थोड़ा काम है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद खेलूंगी। तो बोलेगा तब तक मैं क्या करूँ? तो मैं बोलूंगी लो फोन लो, कर लो। मैं 99% लोग करते हैं, और टियर 1 टियर 2 में तो ये 100% ही होगा। जी सर, तो बहुत जरूरी है हमें ये चीज रियलाइज करना कि किस चीज को हमें कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हो गए हैं, तो मैम पेरेंटिंग में वो क्या करना चाहिए? सर पेरेंटिंग में सबसे पहली बात है कि इवन इफ आई एम बिजी विद माई सम काइंड ऑफ टास्क, तो अगर बच्चा मेरे पास कुछ भी बोलने आया है तो एटलीस्ट मैं उसको एक बार सुनूं
कि बेटा आप क्या बोलना चाहते हो, टेल मी व्हाट यू वांट टू शेयर. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चे को सुने. लेट्स से इवन इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बच्चे को बोलिए कि लेट्स डू वन थिंग, यू सिट विद मी, यू फिगर आउट दैट व्हाट ऑल गेम्स वी कैन प्ले, ठीक है, एंड गिव मी 5 minutes, आई जस्ट कंप्लीट माई टास्क, आई कंप्लीट माई दिस थिंग एंड देन वील प्ले. तो आप बच्चे को इंगेज कीजिए किसी मैनुअल चीज के अंदर अपने साथ बैठा के, रादर देन टेलिंग हिम कि यू टेक अ फोन एंड देन वी कीप ऑन ब्लेमिंग आवर बच्चे कि अरे मैंने तो बहुत समझाया लेकिन ये ऐसा हो गया वैसा हो गया. सो दे आर किड्स आर अ ब्लैंक बॉक्स. एब्सोल्युटली. उनको तो कुछ पता ही नहीं है. वॉट एवर आई एम पुटिंग इनसाइड देयर माइंड वो ही लर्न करेंगे. बट मैम पेरेंट्स, मतलब ठीक है गलती है, मैं मानता हूँ गलती है बीइंग अ पेरेंट आल्सो, बट मैम इतने सारी चीजों में हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं एज अ पेरेंट कि मैं ये नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है हर बार सुनना बच्चे को, बट हाँ पॉसिबल भी नहीं है इतनी बार बच्चे को, क्योंकि अगेन दे हैविंग देयर ओन किड थिंग्स. वो छोटी सी बात है कि उसने ऐसे बोला उसने ऐसे बोला, बट किड्स रिपीट दिस टाइम 5 6 7 टाइम्स. समटाइम्स पेरेंट्स के पास उतना पेशेंस नहीं होता या उतना टाइम नहीं होता. दोनों बातें हैं, पेशेंस भी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता उनके पास कि वो बार बार 6 बार एक ही बात को सुने. यस सर, बिल्कुल फैक्ट है. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रादर देन गिविंग देम दी फोन्स एंड डिवाइसेस, तो हम एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट दी वेज. क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल, जैसे मैंने अगर आपको बताया कि अगर बच्चे ने मुझे बोला कि मेरे साथ आप खेलो, तो मैंने उसको बोला कि आई हैव 10 minute टास्क, ठीक है, लेट मी कंप्लीट दैट एंड देन आई विल प्ले विद यू. ठीक है, तो लेट्स से उसने मेरे से बोला, बच्चे ने बोला कि मम्मा कैन आई हैव योर फोन सो दैट आप 10 minutes के बाद फ्री हो जाओ, देन आई. सो रादर देन गिविंग हिम दिस फ्रीडम कि नहीं ठीक है आई एम बिजी तो तुम फोन ले लो, द वे आई सेड कि हमें बच्चे को ये बोलना है कि यू सिट विद मी, ठीक है, यू फिगर आउट थिंग्स, नोट इट डाउन कि कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से गेम्स हम खेल सकते हैं. ओके. सो बेसिकली हमें बच्चे को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है. okay. आप उसको ये बोल दो कि अच्छा तुम पहले मुझे थोड़ा सा ये स्केच कुछ ऐसा बना के दिखाओ, थोड़ा कुछ ऐसा करके दिखाओ, फिर उसके बाद हम लोग खेलते हैं एज अ रिवॉर्ड. ओके. लेकिन अगर मैंने अपने बच्चे को फोन दे दिया तो मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी ना, मैंने बच्चा तो उसमें एंगेज हो गया. उसके बाद सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरा लिटरली 10 minutes का टास्क था ना, तो मे बी मैं उसको स्ट्रेच कर दूंगी हाफ एन आवर तक. मैं सोचूंगी अरे ये बिजी है, चल मैं ये वाला काम और कर लेती हूँ, मैं ये काम और कर लेती हूँ. सर दिस इज व्हाट हैपेंस. एग्जैक्टली. तो अगर मुझे पता है कि मैंने जो उसको जो भी काम करने के लिए असाइन किया, इट विल टेक like 10 minutes or 15 minutes for him to complete. तो मुझे पता है कि मुझे भी उतनी देर में फ्री होके उसको फिर अटेंड करना है. वो आपके बैक ऑफ योर माइंड चलता रहेगा. अदरवाइज मुझे पता है वो लग गया है उसमें, वो सही है. यस. एंड सर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मैं अपने काम में डिस्ट्रैक्ट हूँ सर, जैसे हम लोग भी बहुत बार रील्स को स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी चीजें सर आजकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्टून के कंटेंट्स भी उतने ज्यादातर इररिलेवेंट है, बिल्कुल कंप्लीटली हमारे हिसाब से भी. तो मान लीजिए मैं उसको कार्टून भी बोल देती हूँ कि तुम कार्टून देखो, सो द लैंग्वेज द कार्टून्स हैव इज वेरी बहुत सारे तो आई थिंक बीच में बैन भी हो गए थे कार्टून्स. तो कहाँ तक आप उस पे फिल्टर लगाओगे? वेरी मच. सो मैम इसमें जैसे आपने मेजर आपका सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को सुनना चाहिए बच्चे को, फर्स्ट थिंग ये. और सेकंड थिंग, सोशल मीडिया कर तो रहा है अपना काम जो भी कर रहा है मैम, बट आपको भी अपना ब्रेन यूज करना है. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको किस तरह से उस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर है आपके हाथ में, बट पावर कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी. यस. एंड सर मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ. यस एब्सोल्युटली. यही आपको बच्चे में इंस्टिल करना है. मोबाइल फोन इज नॉट द मास्टर ऑफ योर लाइफ. हमने बनाया. तो इफ यू नो दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली, ठीक है, तो आप ही को ये पता है कि आप अपने आप को खुद को कितने बजे तक सुलाना चाहिए आपको. सो अगर मैं 10
PM तक अगर मैं स्क्रॉल ही कर रही हूँ, 10 नहीं मैम, 12 1 हाँ, तक चलता तो है। सर ऑब्वियसली अगर मैंने 10 बजे उसको रखा है तो ऑब्वियसली इट विल टेक 30 to 40 minutes फॉर मी टू हैव दिस Exactly. स्लीपी थिंग. Yes, yes, yes. तो आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं, मुझे अगर 10 बजे सोना है तो एटलीस्ट 8:30 या 9 तक आई हैव टू कीप माई फोन असाइड. Okay. एंड दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड थिंग टू डू, एटलीस्ट आज के लाइफ में, क्योंकि कंट्रोल ही हम लोग नहीं कर पा रहे. मैम एक गुरु मंत्र की टाइप की चीज लग रही है मुझे, क्योंकि आपको अगर सोना है तो 1.5 घंटे पहले फोन रखना है, सर बिल्कुल छोड़ देना है बिल्कुल. बिल्कुल अपने हाँ, आप सही बात है, को प्रोसेस होने में आपके माइंड में. यस सर. बहुत, मैंने जैसे आपको शायद पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दिया था कि बहुत सारी चीजें होती है जो हम, जब हम खुद के साथ होते हैं ना तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं. तो वो इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बात होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो मुझे वो भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए ना. आज मैंने क्या क्या किया, आज मैंने ये किया, आज की मेरी लर्निंग्स ये थी, आज का वो था. या मान लीजिए अगर मेरे पास आई हैव अ किड तो फिर मैं 10 मिनट अपने बच्चे से बात करूंगी, रादर देन मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, उसको बोली तुम जल्दी सो, तुमको सुबह स्कूल के लिए उठना है. यही होता है. So, sir, this control is a very important and simultaneously is a very hardest thing to do. और जो ये स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल दैट, इनके लिए भी सेम ही रूल अप्लाई करता है, आई एम श्योर. सर बिल्कुल, मतलब सबसे पहले तो वो डाइवर्ट ही ना हो, डिस्ट्रैक्ट ही ना हो. यस. और अगर वो हो रहे हैं हल्का फुल्का तो टिल दैट टाइम उनको फोन रख देना चाहिए. यस. तो मैम जैसे चलो बड़ों की एज में, आपकी हमारी एज में तो हमें चलो समझ में आता है कि ठीक है 8:30 हमने फोन रख दिया, 10 बजे तक हमें सोना है. बच्चों के केस में कैसे होगा, क्योंकि उनके पास तो, उनके दिमाग में तो वैसे भी बहुत ज्यादा चल रहा होता है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होती है बॉडी में, दिमाग में जी. वो हाउ टू कंटेन. अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा, कोई लेट्स से कोई आगे फर्दर स्टडीज के लिए एंट्रेंस और उनको क्रैक करने के लिए दे आर प्रिपेयरिंग, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ. हाँ सर, तो उस केस में ये होता है कि rather than keep on studying throughout the day, सर उस केस में भी मी टाइम निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो वो मी टाइम क्या होगा उनका? सर मी टाइम ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल फुल फोकस्ड मैनर में, वे में आपने 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है, तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स, एटलीस्ट. अगर आपका टारगेट है कि आप 5 घंटे पढ़ने वाले हैं एंड देन फिर आप अपना लंच लेंगे या जो भी करेंगे, इट विल टेक लाइक 1 hour टू हैव लंच एंड ऑल दैट. उस 5 घंटे में भी सर बीच में एक ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर सर जैसे रात होती है तो रात में बच्चे हैं जो सुबह तक भी पढ़ते रहते हैं. exactly. सर मतलब अगर आप फोकस्ड वे में पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे कंटिन्यूएशन में पढ़ना इज मोर देन इनफ. बीच बीच में कुछ कुछ अपने लिए ब्रेक्स देने चाहिए. एज एक्सपर्ट अगर आप ये बात कह रही हैं तो ये तो बहुत जरूरी है. यस सर, बीच बीच में ब्रेक्स देना, खुद को अपने से, अपने आप की सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करवाना, क्या मैंने लर्न किया, क्या मेरा चीज रहती है. बीच में 2 मिनट उठ के फैमिली से बात करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग जो आपको एक ओवरबर्डन भी नहीं रखेगा कि आप कंटिन्यूएशन में सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ ईज कि बीच में आपने किसी से बात भी कर ली, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें, एंड देन फाइनली यू आर फ्रेश एंड देन अगेन यू गो सिट एंड स्टडी. सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक एवरीबडी हैज टू रियलाइज कि 10 घंटे लगातार पढ़ना इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके, हमने तो सुना है, मेरे तो फैमिली में भी ऐसे काफी सारे एग्जांपल है. दो आई एम नॉट अ स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन. 10 घंटे सुनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मतलब मैं उन्हीं स्टूडेंट में रहा हूँ 33% आने पे मंदिर चले जाते थे, हाथ जोड़ लेते थे कि क्वालिफाई हो. हाँ एग्जैक्टली, बस मुझे वो लाइन क्रॉस हो जाए मेरी. मैम ये जो जितनी भी सारी एक्सरसाइज बच्चे करते हैं या फिर जो बड़े करते हैं, जो भी है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है जिसके लिए शायद ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जो कि हमने मूवीज में ही बहुत बार डायलॉग सुने हैं, देखा है हमने, और आमतौर पे हम नॉर्मल लाइफ में भी ये बातें बहुत बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे. हम शायद जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो लोग कौन है, वो या 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, जो हम बचपन से सुनते हैं, मेरे पेरेंट्स से मैंने सुना है, सबने सुना होगा, सर आपने भी सुना होगा. ये सिंड्रोम जो है, लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे मैम बाहर निकल सकते हैं, या निकल भी सकते हैं कि नहीं?
सर बिल्कुल निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते। जैसे मैंने आपको बोला था कि आई एम दी मास्टर ऑफ माय लाइफ, तो ये फंडा लाइफ में जरूर हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। बट पेरेंट्स तो नहीं समझ रहे हैं सब ना, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा हर चीज पेरेंट्स के हिसाब से ही कर रहा है। तो समटाइम्स इवन यू हैव टू टेक दी यू हैव टू गो फॉर दी ऑप्शंस जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। वेरी राइट। प्लस ऑल्सो गिव योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू डू मिस्टेक्स। ओके। मान लीजिए मैं इतनी फर्म हूं कि मेरा ये जो डिसीजन है यही बेस्ट है, तो अगर वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है सर, मैं उसमें कहीं ना कहीं आई विल फेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, राइट। तो मुझे खुद से ही रियलाइजेशन होनी चाहिए दैट ये मेरा डिसीजन गलत था। okay. जब तक मेरी सेल्फ लर्निंग नहीं होगी मुझे समझ नहीं आएगा। बट मैम वैसे भी ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस में ही आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो ये तो हम यूजुअली भी सुनते हैं कि स्ट्रगल होता है। तो हमें तो पहले से भी हमने ये प्री कंसीव नोशन भी बना रखा है कि स्ट्रगल तो होगा। तो जैसे आप कह रहे हो कि अगर आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, आपको समझ में आ जाता है कि फिर, क्योंकि ये बात है ना बड़ी, ये मैंने एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, उसमें मैंने उनसे भी सुनी थी, वो सीईओ इन सम वेरी बिग कंपनी, उन्होंने भी मुझे ये बात बोली, सेम जो आप बोल रहे हो। बट मैं तब भी उस बात पे फिट इन नहीं हो पाया था। बट आप साइकोलॉजिस्ट हो, इसीलिए मैं फिट इन होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शायद आप मेरे ब्रेन से प्ले करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज कही थी और आप भी ये चीज कह रहे हैं कि जैसे आपको स्ट्रगल होता है, आपको पता लग जाता है कि नो, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, इससे बाहर निकल जाना चाहिए जल्दी। बट बिजनेस में, और वो खुद बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को थोड़ा सा लगा उस बात पे। बट अगेन मैं आपसे ये चीज पूछूंगा, ऐसी चीजें मैंने भी काफी सारी लाइफ में करी हैं और ऐसी बहुत सारे लोग करते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत टफ लगती है, बट हमें क्योंकि ये पहले से बता रखा होता है कि बिजनेस तो टफ है या वो चीज टफ है, ठीक है, तो हमें तो पहले से पता है ये चीज, हम फिर भी उसके अंदर ट्राई करते हैं चीजें कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, और समहाउ हम सेल थ्रू कर भी जाते हैं उसके अंदर, और बहुत अच्छा सेल थ्रू कर जाते हैं। जी, इसका सर बहुत ही अच्छा, ये आप थोड़ा सा बताओ। हाँ, इसका सर बहुत ही अच्छा एक मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमें ट्राई करना चाहिए और हमारे पेरेंट्स को भी उतनी हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि आप खुद मिस्टेक करो एंड देन यू लर्न एंड देन यू रियलाइज कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। तो मेरा ये बोलना कि इससे हमें समझ आ जाता है कि हमें इस चीज को आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका सर आपको ऐसे फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मेरे पास मनी है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसमें स्टार्ट करती हूँ। सर इनिशियली जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो मे बी इनिशियली आई एम प्रिपेयर्ड कि मेरे को कुछ लॉसेस होंगे एंड मे बी फॉर फ्यू इयर्स आई हैव टू यूज माय पॉकेट मनी, उसको वो करने के लिए मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा कुछ। बट सर ये सबके साथ होता है और शायद आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा अगर यू आर इनटू अ बिजनेस, की एक मोमेंट ऐसा आता है, इवन इफ यू हैव फेलियर्स, कांस्टेंट फेलियर्स आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, अगर आप उन फेलियर्स के बाद भी मोटिवेटेड हो, खुश हो, अंदर सर एक खुशी रहेगी अगर वही आपका अल्टीमेट गोल है। ओके। लेकिन अगर आप उन फेलियर से डर गए और आपने सैडनेस या आपने एक ऐसी फीलिंग आपके पास आने लग गई है कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूं, दैट्स द टाइम आपको छोड़ देना चाहिए, दैट्स द टाइम यू शुड लीव इट। क्योंकि फिर क्या होता है सर, फिर वो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना बिजनेसमैन वाला, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मुझे बहुत सपोर्ट मिल गया, रिसोर्सेज मिल गए, मैंने कुछ बन भी गई, लेकिन वो सैडनेस आ जाएगी एक पीक पे पहुंच के, अच्छा, क्योंकि शायद ये मुझे उतनी खुशी दे ही नहीं रहा है। मैंने कर तो लिया क्योंकि मुझे अर्न करना था, मुझे लग्जरीज चाहिए थी, मुझे बिजनेसमैन बनना था, लेकिन वो फिर मुझे वो नहीं देगा। लेकिन सर जिसकी लिटरली अल्टीमेट गोल लाइफ का वो ही होता है ना, वो उस फेलियर में भी एंजॉय एक्सपीरियंस करेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसके अंदर डेडिकेशन ये रहेगा कि यही करना है, इसमें मैं और कोई बात नहीं, फेलियर हुआ है, I'll give another attempt. So वो समझ आ जाता है, and that is very important.
जैसे आपने ना एक बात अभी हमारी कॉन्वर्सेशन में जो हो रही थी हमारी कि जैसे कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हो अपने लाइफ में, ठीक है, और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, अगर आपको डिमोटिवेटिंग चीजें दिखाता है तो मोटिवेटिंग चीजें, बहुत चीजें आती हैं उसके अंदर। तो मेरा एक क्वेश्चन है मैम इसके ऊपर, आज के टर्म में जो सोशल मीडिया और आज की जो जनरेशन है उसके मिला के जो बनता है वो ये बनता है, मनी कैन बाय एनीथिंग। तो मैम ये फैक्ट है, क्योंकि हम जब सुनते थे मनी कांट बाय, क्योंकि उसमें हैप्पीनेस आती थी एक चीज, मनी कांट बाय एनीथिंग। तो ऐसा ऐसा नहीं होता मैम कि पैसा हर चीज तो आप ले ही सकते हो, हैप्पीनेस नहीं। सर पैसा सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस ही दे सकता है, टू बी वेरी ऑलमोस्ट ऑल मतलब हैप्पीनेस हर तरह की, पैसा हमें हर चीज हम परचेज कर सकते हैं। सर आई डोंट थिंक सो, देयर आर मेनी इनर हैप्पीनेस नहीं मिलती है। प्लस पैसा कमाने के चक्कर में, फॉर एग्जांपल इफ मैं बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इनर हैप्पीनेस में उनको नहीं मिली होगी। सर बहुत होंगे, sure. और सर आई थिंक हम लोग सुनते भी रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी सारी चीजें चैरिटी में दे देते हैं 85-90 की एज में जाके। हाँ सर, अगर आपने कभी ये टर्म सुना हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यही होता है कि जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे भी लुक बैक टू आवर जर्नी, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, क्या मेरी लाइफ वर्थ टेलिंग है। बट यूजुअली हम ये बहुत लेटर स्टेज पे करते हैं। सर जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी, मतलब मैं बहुत ज्यादा, मेरी एज नहीं है लेकिन आई एम अ पेरेंट, तो अगर मैं अपनी पीछे की जर्नी जितनी भी, अगर मैं आज अपने बैठ के साइलेंटली, आप तो एक्सपर्ट है नॉर्मल लाइफ जैसे मैं हूं सर, लेकिन अपनी जर्नी हर इंसान देखता है। आप मान लीजिए आप पेरेंट है, आपके अगर बच्चे हैं, तो आपके पास कुछ तो आप कभी तो रिफ्लेक्ट करेंगे ना कि मैंने अपनी लाइफ में ये सब किया, क्या मैं चाहता हूँ कि जो जो चीजें मैंने की वो मेरा बच्चा भी करे? क्या मेरी लाइफ वर्थ लिविंग थी? क्या मैंने जो चीजें अपनी लाइफ में की है, क्या वो एक्सपीरियंसेस, क्या वो बातें ऐसी हैं जो मैं अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकता हूँ? डू आई हैव अ स्टोरी टू टेल टू द नेक्स्ट जनरेशन? इफ नॉट, तो फिर आपको वो आएगा ही नहीं एक्चुअलाइजेशन वाला, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को आता है जो फील की दे हैव समथिंग टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो एज अ मिडिल एडल्ट पेरेंट भी आपके अंदर आ सकता है, एज अ सीनियर सिटीजन हमारे ग्रैंडफादर तो आता ही है। हाँ, तो सर उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं हमें बताने के लिए। लेकिन अगर मैंने अपनी लाइफ बहुत ही रिबेलियस वे में डील किया, और सर जब हम पेरेंट बनते हैं ना, तब हमें एक्चुअल समझ आता है कि सही बात है, ये पेरेंटिंग है, क्योंकि हमने तो अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान किया होता है। तो तब एक सिंपल सा ये एग्जाम्पल है कि हम कैसे अपनी जर्नी को देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने लाइफ अपनी बहुत ही हैपनिंग वे में जी है, रात रात भर बाहर रहे हैं, पार्टीज की है, तो क्या एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को चाहेंगे ऐसा? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। तो यानी कि आप अपने वो स्टोरीज नहीं शेयर करेंगे, और अगर आप उसको शेयर भी करेंगे तो आप इस वे में से शेयर करेंगे कि सेंसर्ड, प्लस आप उनको ये बताएंगे कि बेटा दीज वर द मिस्टेक्स आई डिड इन माय लाइफ। एब्सोल्युटली, यस यस यस, है ना, जो कि ये सही नहीं है, और ये मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, इसलिए आई एम शेयरिंग दिस विद यू। यस यस, वेरी ट्रू, दैट यू नो समटाइम्स पेरेंट्स व्हाटएवर आर सेइंग इज ट्रू, वो सही बोल रहे हैं। ये मैं अभी भी करता हूँ, ये ऐसे ही बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि इट वाज माय बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक करियर ओरिएंटेड वुमन हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास फैमिली है, और मैं अपने बच्चे पे तो ध्यान दे नहीं रही हूँ, और मैं सिर्फ अपने करियर पे लगी हूँ, ठीक है। मैंने एक नैनी ले ली है, और मैंने उनके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ दिया है, तो मेरा बच्चा रादर देन मेरे से अटैच होने के लिए नैनी से अटैच्ड होगा। फिर जब एक फेज आएगा ना, वो अर्ली, वो सीनियर सिटीजन वाला जब फेज मेरी लाइफ में आएगा, जब मैं सोचूंगी कि मेरे पास मेरे लोग होने चाहिए, मेरा बच्चा मेरा ध्यान रखे, तो वो मेरा ध्यान क्यों रखेगा सर? सही बात है, एग्जैक्टली, है ना। तो ऐसा यूजुअली हो रहा है। मुझे क्या रियलाइजेशन होगा, मैंने सब कुछ अर्न कर लिया, लेकिन मेरा बच्चा ही मेरे पास नहीं है, उसकी मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, मेरी फैमिली टूट चुकी है, मैं अकेली रह रही हूँ।
आज मैं अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकती कि बेटा could you please give me a glass of water, because जब वो मुझसे मांगता था तो मैं नैनी को आवाज लगाती थी कि उसको पानी दे दो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसीलिए मनी इनिशियल हैप्पीनेस आपको दे सकता है, ओके, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस आपको नहीं दे सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पता तो सबको होता है अंदर से, सर सबको सबको पता होता है, बट वही है, स्लैंग चलते हैं। और आजकल थोड़ा ज्यादा हाँ। लोग अवेयर हैं इन हम्म। चीजों के बारे में, लेकिन मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि कंट्रोल नहीं आता। राइट। अच्छा मैम, अब जैसे आजकल रिलेशनशिप्स जो हैं, सिचुएशनशिप्स, ये नए नए स्लैंग आ गए हैं। मेरे को तो पता भी नहीं है, पहले बताना सिचुएशन होती क्या है। सिचुएशनशिप्स, ये आज का रिलेशनशिप है जिसमें कोई घोस्ट कर देता है, घोस्ट हो जाता है, या अलग अलग टाइप के सिंड्रोम है। और रिलेशनशिप उतने लॉन्ग लास्टिंग रहे भी नहीं है, या रहे हैं तो आप मुझे बताना, क्योंकि हम यूजुअली जो नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, हमारी डीलिंग उतने ही लोगों से जितने लोगों में बीच में है। आपकी डीलिंग बहुत ज्यादा है, और आपके पास रैंडम लोग आते हैं, रैंडम पेशेंट, साइकोलॉजिस्ट जो आते हैं आपके पास, तो आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे हमें। तो सबसे इसके अंदर ये है कि रिलेशनशिप ऐसे क्यों हो गए हैं, या हो रहे हैं, या सही हो सकते हैं, और टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है तो वो अट्रैक्ट ज्यादा ही करती है। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल में था, तब जो लड़के सबसे ज्यादा बिगड़े हुए होते थे, जो ऐसे होते थे, वो लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। तो लड़का भी सोचता था कि नहीं, मैं बुरा ही होके एटलीस्ट मैं फ्लेम पॉइंट हो रहा हूँ, मैं सबकी नजरों में आ रहा हूँ। इसका शायद नाम आज टॉक्सिसिटी हो चुका है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा स्लैंग अप लगा दिया इसकी। तो ये मैम पूरा एक ब्रॉड मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे कैसे डील करें। सबसे बड़ी बात, ऐसे रिलेशनशिप शॉर्ट क्यों हो गए, टॉक्सिसिटी इतनी पसंद क्यों की जा रही है, और होती ही है ये, क्योंकि हम ये देखते भी हैं, ये चीजें हो रही है। सर मैं सिचुएशनशिप से पहले स्टार्ट करती हूं। ये मैम बताइए, मेरे को तो बहुत ही कॉमन एंड ट्रेंडी टर्म है जो आजकल वेरी फेमस इन जेनजीज। तो सुना तो मैंने भी है, बट है क्या मीनिंग मुझे नहीं। सर सिचुएशनशिप है, कोहैबिटेशन है, बहुत सारे ये टर्म्स हैं जो आजकल नए हैं। सो सिचुएशनशिप इज बेसिकली हमने सिचुएशनशिप बेसिकली ये होता है कि जब मान लीजिए कि मुझे अफेक्शन चाहिए, मुझे इंटीमेसी चाहिए, मुझे हग्स चाहिए, मुझे लव एंड केयर सब कुछ चाहिए, बट देन आई एम नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। ओके, ठीक है। जब मुझे उससे निकलना होगा तो आई एम ओपन फॉर दैट कि मैं कभी भी उससे निकल सकती हूँ। सो इट्स हमारे टाइम में ओपन रिलेशनशिप जैसा टाइप। अच्छा, हाँ, तो इट्स बेसिकली अ वे टू कीप वन फुट आउट ऑफ द डोर। ओके, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो। अच्छा, ठीक है। जब तक हम साथ में हैं तो कोहैबिटेशन और ये सब जो टर्म्स है सर, ये बेसिकली ये होता है लिव इन में रहते हैं, और जब तक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अपने अपने फाइनेंसेस देखते हैं, अपनी अपनी लीगल वो चीजों को हैंडल करके रखते हैं। ये मैम ठीक है वैसे शेयर्ड सर, मतलब मैं कोई मॉरलिटी में नहीं जा रहा मैं। हाँ, मतलब ये साइकोलॉजी के हिसाब से ये ठीक है कि जैसे आपको सर बेसिकली इन चीजों ने रिलेशनशिप्स को खत्म करना के लिए बहुत ट्रेन कर दिया लोगों को, बहुत इजीली। अच्छा, वी आर लर्निंग टू एंड आवर रिलेशनशिप बिकॉज पहले से ही रिलेशनशिप में जाने से पहले से ही वी आर लाइक हैव दिस कंसेंसस कि हम लोग सिचुएशनशिप में हैं तो हम कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि हम कमिटमेंट नहीं दे रहे एक दूसरे को। तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप एट एनी मोमेंट, जहां पे भी मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है। वो पहले के टाइम पे सर रिलेशनशिप्स होते थे जो हमें लगता था कि कॉम्प्रोमाइज करना भी एक रिलेशनशिप का बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और जो होना भी चाहिए, बिकॉज कॉम्प्रोमाइजेशन एक लेवल तक, मतलब आई वुड से कि एक लेवल तक is something which help us to learn the control. अगर आज मैं बहुत ही ज्यादा बबली नेचर की हूँ, या मैं बहुत ही दबंग नेचर की हूँ, तो अगर मेरी शादी हो गई है तो आई शुड नो दैट हाउ टू कंट्रोल माई दिस वेरी जॉली नेचर इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं अपने इन लॉज के पास है, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, हैविंग अ कंट्रोल ऑन योर पर्सनैलिटी। अगर मेरा एक जॉली साइड है तो मेरा एक सेंसिटिव साइड भी तो हो सकता है ना। तो अगर अभी मुझे वो जॉली सेंसिटिव साइड दिखाने के लिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ही कंफर्ट जोन में थी अपने पेरेंट्स के घर पे, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना सेंसिटिव साइड ना दिखाऊं। तो इफ आई हैव अ गुड मॉरल वैल्यूज तो फिर मैं
अपने आप को उसमें भी कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन सर आज के टाइम पे जो ये सब टर्म्स आ गए हैं, ये बेसिकली आपको पहले से ही एक माइंडसेट देते हैं कि ये रिलेशनशिप तो है, लेकिन हम कभी भी हट सकते हैं, कमिटमेंट नहीं है। तो दैट इज अ सिचुएशनशिप। ओके सर घोस्टिंग क्या होता है? घोस्टिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज इन रिलेशनशिप एंड सडनली जो भी कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ हो गया, किसी ने कट ऑफ कर दिया कम्युनिकेशन, एंड द पर्सन हैज नाउ वैनिश्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये मुझे सिचुएशनशिप का कजन ही लग रहा है ये। हाँ सर, ये एक तरीका है सिचुएशनशिप से हट जाना। हाँ वही उसी रिलेशन वही हाँ, लग रहा है। अगर आज आपका और किसी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो आपने धीरे धीरे घोस्टिंग किया, धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम किया, धीरे धीरे वो चीजें की, तो एक सामने वाले को हिंट मिल जाता है दैट द पर्सन इज नाउ मे बी नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तो लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ। ओके, तो सिचुएशनशिप और घोस्टिंग ये इस तरह से चीजें सारी चलती हैं। घोस्टिंग एक तरीका है धीरे धीरे रिलेशनशिप से हट जाने का। देयर आर मल्टीपल वेज। ऐसे केसेस आपके पास आपने आई एम श्योर डील किए होंगे सर। मतलब डील तो क्या, मतलब जैसे आई एम टीचिंग तो दिख भी जाते हैं डेली बेसिस पे। नहीं, जैसे आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में काउंसलिंग भी करते हैं, ऐसे केस आते हैं? सर ऐसा केस तो ऐसा अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैंने डे टू डे लाइफ में हम लोग बच्चों को देखते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इश्यूज देखते हैं, तो दिखता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दे हैव दिस माइंडसेट कि द रिलेशनशिप हाँ है तो है, और कोई बात नहीं, अब नहीं है, अब दूसरा कोई है। तो दिस इज अ वेरी कैजुअल थिंग। आप किस तरह की मैम प्रोफेसर हैं? आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं या फिर फ्रेंडली जब बच्चों के साथ? सर मेरा भी सिचुएशनशिप जैसा ही है कि इफ द चाइल्ड नीड्स दैट फ्रेंडली काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम तो वो शेयर करते हैं ये सब चीजें आपसे? सर बिल्कुल शेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सर। सर जेनजीज की ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सारी और क्वालिटीज हैं, लेकिन एक ही बहुत अच्छी क्वालिटीज है कि वो लोग ना अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं। ओके, दे जस्ट कम एंड स्पीक, वो आपको बता देंगे, क्योंकि उनके लिए बीइंग इन अ वन रिलेशनशिप दिल और मुंह से बस है सीधा। हाँ। तो सर क्योंकि वो लोग को डर ही नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि एक रिलेशनशिप था, 2 था, 3 था, 4 था, दे आर लाइक वेरी फाइन। वो बहुत इजीली इन चीजों के बारे में बात कर पाते हैं। अच्छा, इवन गर्ल्स क्योंकि हम बॉयज तो मेरे कॉलेज टाइम पे भी बड़े नहीं सर, आज के टाइम 5 गर्लफ्रेंड्स हैं, बट गर्ल्स थोड़ा सा अच्छा आज के टाइम पे इवन गर्ल्स ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वोकल एंड वेरी ओपन अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर। शेयर करते हैं मैम आपके साथ? जी सर, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, किस तरह की होती हैं बातें वो, और आप उन्हें कैसे काउंसिल करती हैं? सर मेजरली वो भी आपके लिए काउंसलिंग ही होगी? यस सर, मेजरली उनके इश्यूज ज्यादातर यही, सबसे पहले तो यही होते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस। अच्छा, फिर बात वहीं आ गई, पीयर प्रेशर, सोशल एक्सेप्टेंस, जितनी भी ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हम सुनते ही हैं। तो समटाइम्स दे डू थिंग्स कि मैम मुझे मतलब आई वांट टू इम्प्रेस दैट पर्टिकुलर ग्रुप, या मुझे वो पर्सन अच्छा लगता है, तो मुझे थोड़ा सा उसके हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना है। पहले तो क्रश कहते थे मैम, आजकल क्या कहते हैं? क्रश तो है सर। अच्छा है। अभी वो हमारा वाला थोड़ी चीजें तो है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो सर मतलब उनकी इस तरह की चीजें रहते हैं, तो उनको लगता है कि सामने वाला जैसा है, मुझे जब तक मैं वैसे नहीं बनूंगी तब तक मुझे वो पर्सन को मैं अपने लाइफ में नहीं ला पाऊंगी। ओके, सो दीज इश्यूज आर देयर। उनके ऊपर बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर रहता है, और sometimes the good thing is they are aware of it. Okay. कि peer pressure है। Okay. ये aware this, अच्छा। हाँ। Okay. लेकिन they don't know how to come out of it. आप क्या बताते हैं? ये ज्यादा जरूरी है। आप क्या काउंसिल करते हैं उनको? सर मैं उनको हमेशा ये काउंसिल करती हूँ that you should always learn to say no. Saying no does not mean कि आप किसी को harm कर रहे हो। Saying no means that you are setting the boundaries, that these are your moral obligations. कि आप ये चीज यहाँ इस लेवल तक कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते। And I obviously always tell them कि whatever is yours will remain with you even if you are saying no.
ओके एवरी टाइम आपको दूसरे के हिसाब से एक्ट नहीं करना है. इवन यू नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम अदर साइड ओके कि somebody else is also understanding your point of view. क्योंकि सर अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ थोड़े दिन ही रिलेशनशिप या लाइफ थोड़े दिन ही चल पाती है. 100% नहीं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने अपने नंबर ऑफ इयर्स भी इन्वेस्ट किए होते हैं एंड देन आप उस रिलेशनशिप में नहीं रह पाते 100% एंड देन थिंग्स बिकम बिटर और फिर खराब जोन पे आप उसको छोड़ते हैं चीज़ों को. तो मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करती हूँ अपने बच्चों को कि जो भी मुझसे डिस्कस करते हैं कि you should always convey your feelings. आप बोलो कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती है. जहां पे आपकी मॉरल्स, आपके वैल्यूज सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है वहां तक आप चीजों को थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हो. बट जो चीज आपका कॉन्शियस अलाउड नहीं करता है, डोंट गो फॉर दैट एंड इट विल नॉट रिमेन फॉर योर एंटायर लाइफ. अगर आप कॉम्प्रोमाइज आज कर रहे हो तो बिकॉज समटाइम्स सर कभी तो होता है ना कि एक थ्रेशोल्ड आता है और फिर 100% वो होता है. तो दिस इज व्हाट आई ट्राई एंड मेक देम रियलाइज. इसका मैम उनकी पढ़ाई पर और माँ बाप की साइकोलॉजी पर क्या फर्क, मतलब आई एम श्योर इम्पैक्ट तो होता ही है. क्या होता है मैम और उसको कैसे डील करना चाहिए या माँ बाप को कैसे डील करना चाहिए उन चीजों से? सर पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ता है बिकॉज मतलब तो पढ़ता ही है क्योंकि हम भी बचपन से सुनते हैं. हाँ जी सर. आप ये देखिए कि हमारे टाइम पे कॉलेजेस में क्या काउंसलिंग सेंटर और ये सब मैंने तो नहीं सुने एग्जैक्टली कि होते थे या ये मैंडेटरी हमारे कॉलेज में था बट वो फीस बताते थे. अच्छा ओके. लेकिन आप ये देखिए कि अभी आज के टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मैंडेटरी हो गया है. यूजीसी ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि काउंसलिंग सेल्स और ये सब होना चाहिए. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट सब फुल रहता है. अच्छा. बिकॉज इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इन लोगों के लाइफ में. एक तो इतनी इम्पल्सिविटी है ना सर डिसीजन मेकिंग तो की. आप जब आप पढ़ाते हैं कॉलेज में उसके बाद आप जब अपने कॉलेज एमआईटी के अंदर आप बैठते नहीं है उसमें जो? नहीं सर उसके लिए अलग. अच्छा उसके लिए अलग. हाँ अलग काउंसलर्स और वो सब हैं तो सो दे डील विद इट. बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विजिटिंग द काउंसलिंग सेंटर. उनको लगता है आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी या फ्रेंड्स को पता चल जाएगा. अभी भी है. हाँ तो वो लोग पर्सनली रीच आउट कर लेते हैं जिस भी फैकल्टी के साथ वो लोग कंफर्टेबल होते हैं. तो ये वाली चीज होती है. तो सर मतलब ये कि पढ़ाई तो मेजरली इम्पैक्ट होती है बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी इन कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ. दे कीप ऑन टेक्सटिंग. इम्पल्सिविटी है तो सर बहुत ज्यादा जल्दी कोई डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, गलत डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं. तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं. सर ऑल दीज थिंग्स एंड एज फार एज द पेरेंट्स आर कंसर्न तो वो डील कैसे करें इस सिचुएशन से? पेरेंट्स सर पेरेंट्स के लिए देखिए मैं तो यही बोलूंगी अगर आपने बच्चे को स्कूल में कॉलेज में भेज दिया है या स्कूल में भेज दिया है दैट डज नॉट मीन दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स देयर. देयर आर मेनी पेरेंट्स हु सेज कि आपके पास भेज दिया है ना बच्चे को तो आप देखिए. ये होता है. They don't understand that this is a collaborative thing which we have to do. उनको लगता है कि टीचर के पास वो रहता है बच्चा 9 घंटा तो that is now their responsibility. तो सर पेरेंट्स ये चीज नहीं समझ पाते हैं. फॉर दिस आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि इवन इफ यू हैव सेंड योर चिल्ड्रन टू schools or colleges, that does not mean कि आपकी responsibility खत्म होती है, but the responsibility starts. बहुत ज़्यादा responsibility start होती है क्योंकि that is a very initial phase जहाँ पे बच्चा अपने खुद के parents को trust ना करके बाहर लोगों को trust करना start करता है. मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसकी टीचर हूँ तो वो मेरी बात सुनने लगेंगे अगर आई एम काउंसलिंग द स्टूडेंट और अ चाइल्ड तो वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. तो एक ये बहुत अच्छा बहुत ही इनिशियल फेज है जहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बॉन्ड विद योर चाइल्ड. अगर वो अपने जो भी इश्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा है यू कैन नॉट से कि जाके अपना मैम से डिस्कस करो. आप सीधा आप सुनिए उसकी बात को, उसको अटेंशन दीजिए, उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए. बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं. टीचर 1 साल 2 साल 3 साल बच्चे की लाइफ में रहती है. डिपेंडेंसी अगर होनी भी है तो सर पेरेंट्स पे ज्यादा होनी चाहिए.
तो पेरेंट्स ही ज्यादा अच्छे से बेहतर तरह से समझा सकते हैं, वो अपने बच्चे को जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए और कौन सी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उसको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। मैम जैसे जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारों का ये मेंटेलिटी होती है और ये अच्छी भी है। आजकल एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक माहौल भी बना हुआ है इंडिया के अंदर। जैसे कोई जॉब से अगर कोई स्विच कर रहा है तो उसकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए? पहला तो ये कि उसकी क्या साइकोलॉजी एग्जैक्टली होनी क्या चाहिए, या फिर क्या सही है। एक तो उसकी क्या है और एक क्या सही होनी, क्या सही चीज है। और दूसरा मैम, जब आप स्विच कर गए हैं तो किस लेवल तक आप स्ट्रेस लेने को आप रेडी हैं आप? क्योंकि बिजनेस के अंदर स्ट्रेस तो होता है और जॉब के अंदर भी होता है। मैं जॉब को भी ऐसे नहीं बोलूंगा, जॉब के अंदर भी होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें एक अलग होता है, इसमें एक अलग होता है। तो उस स्ट्रेस को आप कैसे डील करेंगे अगर आप स्विच कर रहे हैं, और अगर नहीं भी स्विच कर रहे हैं तो अपनी अपनी, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो वो कैसे स्ट्रेस को, उनकी क्या साइकोलॉजी डेली बेसिस पे होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के लिए ना मंडे ही एक बहुत सारे हम सुनते भी हैं, गाने भी बहुत सारे बन चुके हैं इस पे कि मंडे को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एज इफ कि वी गोइंग टू डाई ऑन दैट डे, कि मंडे बहुत बड़ा एक टैबू सा भी है। ये शायद बाहर के कल्चर को हमने अडेप्ट किया इस वजह से है, या फिर इंडिया में ही है ये। बट एक मंडे लगता है लोगों की यार मंडे है, अब जैसे सैटरडे संडे हो गया, हम एक अच्छे खासे उससे आए हैं। तो क्या आपकी उसमें मैम आप बताइए थोड़ा सा। सर पहले मैं मंडे से ही स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है, आती है आपको? जॉब बिल्कुल सर। अच्छा, आती है, ऐसा नहीं अच्छा। है। तो सर मंडे जो फीलिंग आती है, इफ आई मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो फॉर मी, हाँ आप रिलेट करके बताइए। हाँ, मंडे मुझे इसीलिए स्कैरी लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे अब 5 दिन काम करना है, बट बिकॉज मुझे ये पता है कि आई एंजॉयड माई सैटरडे एंड माई संडे, द 2 weeks ऑफ माई वीक ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ओके। कि मुझे ये पता है कि मुझे सैटरडे को मैं इतने बजे उठने वाली हूँ, फिर मैं इतने देर तक मैं रिलैक्स करने वाली हूँ, फिर मैं ऐसा करूंगी, फिर मैं वैसा करूंगी, मैं अपनी मन मर्जी की मूवी आज देखने वाली हूँ। सो 2 दिन मैंने रिलैक्स किया, मैंने खुद को ही बताया कि मुझे क्या करना है। आई वॉज द बॉस ऑफ माई ओन लाइफ for these 2 days. Now Monday जो होता है वो हमें ये बताता है कि अब अगले 5 दिन हमारा बॉस कोई और है। yes. सही बात। हमारे ऊपर कंट्रोल्स हैं। अब मैं 5 दिन वो ही करने वाली हूँ जो मुझे बताया जाएगा, rather than doing what I always wanted to do. So that is the most scariest thing जो शायद मंडे में दिखती है। Okay. काम करने में I don't think कि कोई ऐसे घबराता होगा, क्योंकि हर कोई इंसान काम करना ही चाहता है। 1 दिन से 2 दिन 4 दिन आप घर पे बैठ जाओगे, तीसरे दिन आपको बोर होने लगेगा। Exactly. तो काम तो हम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आई थिंक जो हमारा जो कंट्रोल अपनी लाइफ पे 2 दिन रहता है वो हमें पता है कि मंडे ऑनवर्ड्स नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर अगर लोग रिलेट कर पाएंगे तो यही फीलिंग आती होगी कि ओ अब फिर से बॉस की बातें सुननी, अब फिर से 9 to 5 जॉब पे रहना, एक फिक्स शेड्यूल हमें फॉलो करना है। सो आई थिंक ये एक मंडे का वो एक स्कैरी पार्ट हो सकता है, क्योंकि 5 दिन हम बंद जाते हैं। एक मैम बीच में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आप बता सकते हैं अच्छी तरह से इसको ना। ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीन्स ऐसे थे पहले से, क्योंकि हम एज ए इंडिया हम काफी टाइम तक गुलाम रहे, सालों तक हम रहे, तो जीन्स तो थे ही हैं हमारे, ऐसा वो जीन्स थी तो चले आ रहे हैं अभी तक। तो उसका भी कुछ होता है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ साइकोलॉजी में कि सर कि पीछे से ही ऐसा कुछ बर्डन हम लेके तो आ ही रहे हैं। हाँ. कि हमें गुलाम वाली बात होती है। जैसे मैं कई चीजों में पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें फॉलो करता हूँ, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता हूँ, उसके अंदर चीज बहुत क्लियरली मेंशन है कि हम इंडियंस के अंदर जिन जिन कंट्रीज पर जिनको गुलाम बनाया गया, जिसपे किसी ने राज किया, ब्रिटिश एम्पायर ने, ऑटोमन, बहुत सारे एम्पायर्स रहे हमारे, उनकी जीन्स आज तक भी, साइकोलॉजी भी आज तक भी, जैसे हम कहीं पे भी 2-4 लोग देखते हैं तो हम लाइन लगा लेते हैं एकदम से। हमारी लाइन लगाने की बड़ी जबरदस्त आदत है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ लेना ही है, हमें कुछ लेना है, किसी से एक्सेप्ट करना है। ये बस एक क्योंकि मैं रह जाता इसीलिए मैंने बीच में आपको बोला। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो वाला फेज देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स और ये सब चीजों वाला, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो वहां से स्टार्ट नहीं हुई। हाँ एग्जैक्टली।
वो और उससे पहले थी। यस और हम तो शायद सबसे पुराने हैं जी, हिंदू धर्म। एक वो भी टाइम था जब हमारे टाइम पे बहुत ही हम सुनते हैं पुराने टाइम का जो भी चीजें हैं कि लोग बहुत खुश हुआ करते थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन कनेक्टिविटी ज्यादा थी, टुगेदरनेस ज्यादा थी हमारी सोसाइटी में। हम वो भी रहे हैं जिन लोगों ने इंडिया पे राज भी किया, और हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे भी हमारे राजा महाराजा या हमारे भगवान और सब लोग हुआ करते थे। प्लस सर आप ये देखिए कि हम लोगों का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। पहले हम क्या थे, एक एनिमल स्पीशी टाइप ही थे, धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो सर एनिमल का क्या काम होता है? एनिमल का काम होता है टू हंट एंड देन रेस्ट, हंट ईट रेस्ट, हंट ईट रेस्ट। तो एक वही हमारी जो इंटेंसिटी अभी भी हमारे अंदर वही चीज है। ये तो सर हम जितना ज्यादा हम इवॉल्व होते जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, हम लोगों ने अपने लिए खुद के लिए बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना ली है कि कोई भी कंफर्ट आएगा तो उसके लिए पहले मुझे स्ट्रगल करना है। जबकि हमारा भगवान ने जो बेसिक, जब ये अर्थ बनी थी, लोग बने थे, तब बेसिक सबसे पहले यही था कि आपको सिर्फ अपना सर्वाइवल देखना है। सर्वाइवल क्या था? सिर्फ आपको जीना है, खाना है और सोना है, यही सर्वाइवल थे। तो सर कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे अंदर है, लेकिन अब सर्वाइवल के साथ हमारे पास बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने अपने लाइफ में ऐड कर ली है, तो जिनके लिए हमें मजबूरन काम भी करना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं करेंगे पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फूड नहीं आएगा। पहले सर फूड के लिए वो थोड़ी पे थोड़ी करते थे, बार्टर था। हाँ, ये सब चीजें होती थी। तो इस वजह से ये जो हमारे अंदर अभी भी एक वो है कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सही बात है। तो सर वो वाली ही चीज है। प्लस वही फिर मैंने जैसे आपको बताया, तो मंडे से हमें पता है कि हमें आराम नहीं मिलने वाला, तो एंटायरली मंडे ऑनवर्ड्स का हमारे पास, और मंडे इसीलिए लगता है क्योंकि मंडे के बाद भी और दिन है। हाँ सही बात है, पूरा वीक है। हाँ, आप मंडे जाते हो, ऑफिस से होके आते हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि अभी 4 दिन और आगे जाना है, लेकिन 2 दिन आपको ये याद दिलाते हैं कि भाई आप कंफर्ट, आप सही साइकोलॉजी है वैसे कि सही है, सही साइकोलॉजी है कि आपको 5 दिन आपको ऐसा लगे कि आप स्ट्रगल है या कुछ भी है, और 2 दिन फ्री है। सर साइकोलॉजी का तो इसका ऐसा है कि मतलब इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। मैंने जैसे बोला कि आप अगर खुश हैं तो आपके लिए ये सही है। तो मंडे भी अच्छा लगेगा ना मैम? सर मंडे अच्छा तो लगेगा, लेकिन फिर भी सर वही मैंने जैसे बोला ना कि आराम करना तो हम जब से धरती पे आए हैं तब से ही हमारे अंदर वो भगवान ने क्वालिटी डाल के भेजी है कि आराम भी तुम्हें करना है। तो सर एक वो वाली चीज है। प्लस सर पहले की लाइफ में और आज की लाइफ के स्ट्रगल्स आर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर टीचिंग लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो टिचिंग में ज्यादातर जो विमेन होती हैं वो क्यों जाते थे? क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब टाइम लिमिट होती थी कि आपको इतनी देर अपना पढ़ाना है, लेक्चर्स लेने हैं, और उसके बाद आपको अपना घर आना है, देन यू कैन लुक आफ्टर योर फैमिली एंड योर किड्स एंड एवरीवन। ठीक है, अच्छे टाइम बाउंड थे, अच्छे वो थे। अब सर आप आज का देखिए टाइम, टीचिंग भी कॉर्पोरेट की तरह हो गया है। अच्छा, फिक्स जॉब है, आपको 9 to 5 जॉब करना ही है। सर स्कूल टीचर्स का ले लीजिए, 7:30 8 के अराउंड जब भी स्कूल स्टार्ट होता है, उसके बाद 2:30 बच्चों के जाने के बाद भी 2:30 3 तक दे हैव टू स्टे, बिकॉज देयर आर सम टास्क जो एवरी डे के उनको कंप्लीट करने होते हैं। तो अब वो भी हमारे लिए वैसा बन गया है। अच्छा, तो क्योंकि टाइम इतनी जल्दी से बढ़ रहा है कि चैलेंजेस और स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा डबल हो गए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि जैसे आपको पढ़ाना पसंद है, बट अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, पढ़ाने के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, देन इट टेक्स समथिंग आउट ऑफ यू कि ओके मेरे को तो ये पसंद है, बट सिंस आई एम इन दिस प्रोसेस आई हैव टू डू दिस। मेरे को और भी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ रही हैं, मुझे और भी बहुत कुछ अलग से करना पड़ रहा है, तो वो मुझे एक वो देता है कि मतलब ना ये काम मुझे थकाता है। मे बी टीचिंग मुझे नहीं थकाता, आई एंजॉय टीचिंग, बट ये एक्स्ट्रा चीजें जो अब ऐड कर दी गई हैं, एक प्रोफेशन के साथ बहुत मल्टीपल चीजें कनेक्ट कर दी गई हैं, तो सर कुछ चीज उसके लिए तो मैं नहीं टीचिंग में आई थी। सही बात, राइट।
तो ये ऐसी चीजें होती है सर जो थोड़ा सा आपको वो कर देती हैं कि आपके लिए टायरिंग हो जाता है। Okay. अगर मुझे ये पता है कि मेरे कल 3 लेक्चर्स है, आई जस्ट कंप्लीट ऑल माय 3 लेक्चर्स एंड देन आई विल बी फ्री, तो वो मैं उसको बहुत एंजॉय करूंगी। Yes, absolutely. Because शायद वो आपको अच्छा लगता है वो हाँ, करना। क्योंकि वो मैं खुशी से कर रही हूँ, प्लस उसके बाद मेरे पास अपने लिए भी टाइम है। Exactly. लेकिन अगर मैं 9 to 5 जॉब की तरह उसको कर रही हूँ, उसमें एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, प्लस मैं जब तक मैं घर पहुंचती हूँ मैं बुरी तरह से टायर्ड होती हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो वेयर इज द हैप्पीनेस? Then you look for Saturday, Sunday. Yes. Okay. एंड एक क्वेश्चन सर आपने फिर पूछा था कि उस जॉब से बिजनेस शिफ्ट जो करते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या, राइट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? होती तो है उनकी, बट राइट क्या होनी चाहिए सर? सबसे राइट, और अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो क्या होनी चाहिए? हाँ सर, सबसे राइट तो ये होनी चाहिए कि अगर आप खुद वो चीज करना चाहते हो, अगर मैं सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने शायद पहले इस चीज को आंसर किया था कि अगर मैं किसी और की रील्स देख के इम्प्रेस होके और मैं सोच रही हूँ कि ये ज्यादा खुश हैं, तो मैं भी वो करती हूँ, इवन दो दैट इज नॉट माई फोटे। आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन फेसिंग द कैमरा, या मैं वो चीज मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ईजी तरीका है, तो चलो मैं भी इसको ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन अगर आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो सर मैं एक दिन उसमें थोड़ा एफर्ट्स लगा के इन्वेस्ट कर लूंगी, 2 दिन इन्वेस्ट कर लूंगी, बट देन ग्रेजुअली मेरी एनर्जी वहां से डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि वो मेरा कभी अल्टीमेट गोल था ही नहीं, वो मैं कंपटीशन में लग गई हूँ दूसरों के साथ। वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? देन व्हाई एम आई इनटू दिस 9 to 5 जॉब? मैं भी ऐसे कुछ भी वीडियो बना के और मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत टाइम तक सर वो हैप्पीनेस नहीं देगा। सो हम अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं आफ्टर अ जॉब, तो हमें फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी का हमें पता होना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट एरिया का पता होना चाहिए कि आई सच में मैं जाना चाहती हूँ, और एम आई जस्ट वांट टू कम्पीट विद समबडी एल्स, या आई वांट टू शो समबडी कि मतलब तुम कर रहे हो तो क्या मैं भी कर सकती हूँ। राइट। तो आई थिंक ये रियलाइज करना कि क्या मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रादर देन सेइंग कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। And once you are part of it, then you facing some stress or something, then वैसे तो stress is a good thing, pressure is a good thing, मैं खुद मानता हूँ, but एक लेवल तक होता है, उसके बाद से फिर उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब क्या सही चीज होनी चाहिए उस टाइम पे करने के लिए? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस के दोनों वर्जन्स हैं, एक नेगेटिव वर्जन भी है और एक पॉजिटिव भी है। 100%। तो नेगेटिव को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यूस्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, उसके टर्म है। डिस्ट्रेस तो सुना है मैंने, पॉजिटिव का नहीं। यूस्ट्रेस। देखिए अब ये भी नेगेटिव सुना हुआ है, पॉजिटिव नहीं सुना सर, इसको यूस्ट्रेस बोलते हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रेस तो चलिए हमें पता ही है कि किसी की भी लाइफ में ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग यूस्ट्रेस, जो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देके इसको समझाऊंगी कि क्या होता है, तो उसको भी हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको भी, मैंने जैसे आप इनिशियली कहा था कि हम नेगेटिव पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, वही मैंने बोला, हम पॉजिटिव पे फोकस नहीं करते हैं। तो यूस्ट्रेस मान लीजिए कि मेरी जॉब लगी है नहीं और मुझे कल ज्वाइन करना है, ठीक है, एंड देन एक तो होता है किसी भी इंसान का कैजुअल अप्रोच होना, जिसको हम बोलते हैं कि उसको टेंशन ही नहीं है कि क्या मैं कैसा मेरे को कैसे अपने प्रिपरेशन करना है, कल मेरी फर्स्ट जॉब है, व्हाट शुड आई वेयर, व्हाट शुड आई कैरी विद मी, और मुझे वहां पे कैसे क्या होना है। तो सर ये जो कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो होने जरूरी भी हैं, एग्जैक्टली, ये आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं, ये आपको पीछे नहीं खींचते हैं। सो समबडी हु इज थिंकिंग अबाउट कि अरे मैं कल क्या पहन के जाऊं, कल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कल मुझे ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, सो दैट डज नॉट कम अंडर द डिस्ट्रेस, क्योंकि वो आपका एक परमानेंट किसी अच्छी चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए स्ट्रेस है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम स्ट्रेस होना मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, लेकिन ओवर स्ट्रेस होना ऑब्वियसली गलत है। लेकिन अगर मुझे पता है मेरा कल एग्जाम है, तो भाई मुझे इतना स्ट्रेस होना चाहिए कि आज मैं पढ़ूं,
Quite well I obvious. should not be हाँ, that confident या I should not be that casual कि देखा जाएगा यार मैं तो नहीं पढ़ रही आज ये मेरे फ्रेंड्स ने घूमने बुलाया तो मैं तो वहीं जा रही हूँ. सो आई फील ये सब होते हैं यू स्ट्रेस जो आपकी किसी अच्छी चीज को अचीव करने के लिए जब आप यू नो स्ट्रेस्ड होते हो कि कल कैसा होगा, कल अच्छे से मैनेज हो जाए, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है तो आप उसके लिए स्ट्रेस हो, कल मैं ये पहन के जाऊंगी, कल मैं ऐसे दिखूंगी, कल मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल रही है, तो एक बहुत ही अच्छी सी एक्साइटमेंट वाली स्ट्रेस है. सो ऑल दीज आर दी यू स्ट्रेस. और तो हम लोग डिस्ट्रेस पे ही फोकस्ड रहते हैं. तो सर स्ट्रेस का बेसिकली यही होता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस प्रोफेशन के साथ कितना हमें पेन लेना है. Okay. अगर मैं बिजनेस में हूँ तो भी, और मैंने जैसे आपको बताया था कि एक फेलियर्स के बाद भी हमें रियलाइज हो जाता है कि क्या इस चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ या नहीं. Yes. क्या मैं उस फेलियर को भी इंजॉय कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ. बिल्कुल सही बात. और सर एक थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें था, यही था मैम कि स्ट्रेस मतलब इसमें डील कैसे करना है उसको साइकिल बिजनेसमैन के लिए एक लेवल पे जाके कैसे डील करना है उसको? सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए किसी को भी अगर कोई भी जॉब से स्विच करना है या किसी भी जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच करना है या बिजनेस से स्विच करना है आपको जॉब की तरफ, क्योंकि आपने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड what you want is the most important thing. For example, मान लीजिए आज मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ मुझे एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स से कि किसी भी चीज की बोल लीजिए वो मेरा टीचिंग रोल से डिफरेंट है, ठीक है, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मुझे बहुत चीजें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और वो सब चीजें दे रही हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि क्या मैं उस रोल ट्रांजिशन के लिए रेडी हूँ. क्या मैं वो कर पाऊंगी. बट मैम ये हमेशा तो गलत नहीं होता, कई बार तो ये सही सर भी होता है. कई बार सही होता है. तो मान लीजिए मैंने उसको सोच भी लिया कि नहीं ठीक है मैं अभी शायद प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मे बी मैं लर्न कर लूंगी तो मैं वो कर लूंगी, लेकिन सर अगेन वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रियलाइज करना, जल्दी रियलाइज करना, रादर देन कीप ऑन स्ट्रेचिंग कि कोई बात नहीं 1 साल ही तो हुआ है, चल और 1 साल और ट्राई कर लेती हूँ 1 साल. सो रियलाइजिंग इट एट अ वेरी इनिशियल स्टेज सेव्स योर टाइम. यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है. और सर रियलाइजेशन सबको हो जाता है. हाँ सही कह रहे हैं आप, होती तो है. कुछ लोग स्ट्रेच ही करते रहते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, और कुछ लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट मटीरियलिस्टिक लग्जरीज जो उनको मिल रही होती है, क्योंकि अगर मैंने बोला कि पैसा तो मुझे अच्छा मिल रहा है इवन दो आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, तो स्ट्रेच भी करते रहते हैं. देन ग्रेजुअली सैडनेस होते होते धीरे 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 सर अगर क्रॉनिक होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, देन इट कैन लीड टू अ डिप्रेशन एज वेल. क्योंकि फिर ऑब्वियसली जो चीज मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ मैं जाना बंद कर दूंगी, आई विल स्टॉप डूइंग दैट थिंग. तो एक लेवल आता है वो फिर हमें डिप्रेशन फेज तक लेके जा सकता है अगर वो चलता चला जा रहा है, अगर मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ. ओके. मेरे को मैम एक जानना है, ये तो मेरा पर्सनल है, मेरे को ये जानना है कि आपके पास आपने सबसे सीवियर डिप्रेशन का जो केस आपको भी काफी इम्पैक्ट किया हो उसने, आपको भी लगा हो कि होता ही है आप लोग, क्योंकि आप लोग जिस तरह से डील करते हैं यू नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द माइंड, यू अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ द पर्सन आल्सो. ऐसा कौन सा केस है मैम, एक आप बताना चाहें तो? बहुत होंगे, एक कोई ऐसा बताना चाहे तो. सर एक केस था जो मैंने देखा था, वो ऐसा था कि एक लेडी थी, उनकी लव मैरिज हुई थी. Okay. तो इनिशियली द लेडी वाज वेरी हैप्पी और सब चीजें थी. तो ये तो हमें केस हिस्ट्री जब हम लेते हैं तब हमें पता चलता है. तो जब वो हमारे पास जिस फेज में आई थी तो क्या था कि व्हेन शी एंटर्ड इन द केबिन तो शी स्टार्टेड शाउटिंग. अपने बहुत ओल्ड मतलब आई थिंक होंगे समवेयर अराउंड 70 के अराउंड उनके मदर फादर होंगे. तो वो लोग उसको लेके आए थे एंड देन शी स्टार्टेड शाउटिंग कि मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, ये कैसा जगह है, मुझे किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ. अच्छा. और मतलब उसने काफी ऐसे वो चीज की एंड इन फ्रंट, क्योंकि जब उसके फादर उसको कन्विंस करने की समझाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने अपने फादर को चेस्ट पे बहुत तेज हिट किया. फादर को अपने? हाँ, अपने फादर को उसने बहुत तेज हिट किया इन फ्रंट ऑफ यू.
हाँ, इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब उस टाइम पे आई वाज वर्किंग विद द हॉस्पिटल, तो तब अच्छा, हमने वहां पे देखा था, अच्छा। तो हमारे सामने उसने बहुत तेज अपने फादर को चेस्ट पे हिट किया। हम्म, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि क्या हो रहा है। हम्म, तो जब सर बात हुई, फिर जैसे तैसे उनको इंजेक्ट करके थोड़ा काम किया गया और वो सब चीजें, क्योंकि शी वाज शाउटिंग अ लॉट एंड शी वाज इन अ फेज कि उसको भागना है यहाँ से एंड ऑल दैट, और मम्मी पापा उसके कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे वर वेरी ओल्ड। हम्म, तो सर जब केस हिस्ट्री ली हमने, जब बात की, तब हमें पता चला कि उनकी लव मैरिज हुई थी। हम्म, तो आई थिंक उसका शायद बेटा भी था, तो ग्रेजुअली शी गॉट टू नो दैट द हस्बैंड इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के Okay. साथ। एंड देन जब शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग, और मतलब बहुत सारे घर पे फाइट्स और ये सब चीजें होती थी, तो द डे केम वहां पे जिस दिन उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। Okay. सो दैट वाज द इनिशियल फेज जहां से वो उनका ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ। Okay. देन इनिशियली व्हाट हैपेंड इज शी वो डिप्रेशन सिम्टम्स उनको आने लगे। तो वो अपने घर में मतलब नो हाइजीन, नो नथिंग, किसी से बात नहीं करना, आइसोलेट कर लिया था उन्होंने अपने घर पे खुद को। और ये सारी चीजें हुई सर ग्रेजुअली। आई थिंक उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिला था उन्हें, या पेरेंट्स क्योंकि ओल्ड थे तो उनको भी रियलाइज नहीं हुआ। तो फिर उनको कुछ कुछ हेलुसिनेशंस होने लग गए। Okay. तो सो समवट व्हाट हैपेंड इज कि उनको डिप्रेशन के साथ साथ और डिसऑर्डर्स So भी is होने लग गए। hallucinations a part of depression? नो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। Okay, excuse me. Yes. स्किज़ोफ्रेनिया। Yes. Yes. सो स्किज़ोफ्रेनिया, अगर मैं मेंटल हेल्थ के उसमें बात करूं, तो स्किज़ोफ्रेनिया इज बेसिकली अ कैंसर ऑफ मेंटल हेल्थ। Okay. तो जिसमें मतलब ये है कि ट्रीटमेंट मतलब इलाज परफेक्टली फाइन नहीं हो पाता है पेशेंट। Okay. अगर माइल्ड वर्जन है तो विद मेडिसिन थोड़ा बहुत Hmm. बेसिक अपनी लाइफ को वो लोग Hmm. फंक्शन कर सकते हैं। मॉडरेट तक भी थोड़ा बहुत हो सकता है, Hmm. बट उस अगर सीवियर फेज है तो नहीं होता है। सो Okay. हेलुसिनेशन बहुत तरह के होते हैं, जिसमें जो चीजें रियल में नहीं होती हैं, Hmm. पर्सन वैसा फील करता है कि वो उसके सामने है, या वो उसको फील हो रही है, Hmm. या फिर वो उसको सुनाई दे रही हैं आवाजें, ऑल्दो द थिंग्स आर नॉट देयर। Hmm. तो बहुत मतलब ऐसे होते होते तो वो ग्रेजुअली बहुत अग्रेसिव हो गई। तो बेसिकली इंटेंसिटी जो थी उसके प्रॉब्लम्स की, वो बहुत बढ़ती चली गई। Okay. एंड उसके फादर ने, उसकी मदर ने हमें बताया कि मतलब एक फेज ऐसा आ गया था, क्योंकि सर वो थोड़ा रियलिटी से दूर हो गई थी। शी वॉज नॉट इन अ सेंसेस टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज शी, हु इज शी, वो किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, बिकॉज वो शॉक में चली गई थी। Okay. जो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ा, उसका बहुत ही ज्यादा सिवियर शॉक ट्रॉमा बोल लीजिए उसको, इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो सर वो अपने पेरेंट्स को बहुत मारती थी। Okay. मतलब उसके आई थिंक फादर ने हमें थोड़ा सा दिखाया था कि जब भी वो थोड़ा उससे बात करते थे या वो अग्रेसिव उसमें आती थी ना, तो वो उनको बहुत बुरी तरह मार भी देती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ओल्ड हैं। और जब सर कोई इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में ना एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आती है, और आप जैसे मे बी अगर आप अभी मुझे पकड़ेंगे तो मे बी मैं नहीं छुड़ा पाऊंगी, लेकिन अगर जब वो वाला फेज होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं या वो सब चीजें बहुत फास्ट वे में वर्क इसका करते कोई हैं। लॉजिकल रीजन होता है? हाँ सर, बिल्कुल है, साइंटिफिक चीजें होती हाँ, हैं वही इसकी। साइंटिफिक हाँ, रीजन है। तो सर उसमें क्या होता है कि बॉडी इतनी तेज वर्क करती है, और जो हमारे केमिकल्स हैं वो इतनी तेज हमारे ब्रेन में और बॉडी में शूट करते हैं कि एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो वो बेसिकली वो उनको बहुत मारती थी। तो मेरे लिए ये वाला जो केस था, मेरे लिए बहुत ही मतलब आई लिटरली फेल्ट वेरी बैड कि मतलब ऐसा भी लिसनिंग टू इट आई एम आल्सो फीलिंग रियली बैड। यस। तो वो केस जो था वो मुझे याद रहता है, मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ, तो वो बहुत ही पेनफुल था। मैम, जैसे आपने बताया पिछला जो आपका पहला एक्सपीरियंस बड़ा ड्रेडफुल एक्सपीरियंस था सही में, मतलब क्योंकि आपने फेस किया तो आपको ज्यादा ही लगा होगा, हल्का सा भी इमोशनल भी होगा इसको बताते हुए। उसी से ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना रेलेवेंट है, आउट ऑफ द टॉपिक आल्सो है हमारे, बट स्टिल आ रहा है तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ आपसे। ये मैम, जैसे आप मुझे एक बात कह रहे थे, उससे मैं बात को वहां से रिलेट करके बोलता हूँ। जैसे आप कह रहे थे कि कोई एड्रेनलिन रश आता है बॉडी के अंदर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भूत प्रेत में मैम आप मानते हैं आप?
नहीं सर, मैं नहीं मानती क्योंकि नहीं मैंने मानते हैं? ज्यादा मतलब मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कभी किया नहीं, ओके गॉड ग्रेस, तो फिर हम्म। इसीलिए। मैम क्योंकि ऐसा होता है, जो मैं आपको नॉर्मल सोसाइटी का आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, यूजुअली लोग साइकाइट्रिस्ट या फिजियोलॉजी मतलब साइकोलॉजिस्ट इनके पास नहीं जाते हैं। हम्म ऐसे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया में, लोग वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं, और वहां पे जाके वो चीज दिखती भी है और लोगों को कि ऐसा हो रहा है। भूत प्रेत को मैं, मेरा बड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट है, मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ उस पे। हो सकता है मैं मानता भी हो सकता है नहीं मानता हूँ, बट हाँ मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप भगवान को मानते हो तो अगर आप सही मानते हो तो गलत भी होता ही है जी। तो भूत को हम नेगेटिव देखते हैं तो मैं गलत मान के चलता हूँ, तो हम्म हो सकता है मानता ही हूँ चीज को। तो मैम ये जो भूत प्रेत और ये सब चीजें हैं, ऐसी चीजें भी आपके आती होंगी, आई एम श्योर आती होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके अंदर ऐसे केस होते होंगे जैसे आपने अभी बताया भी मेरे को केस। पहली बात तो आपके पास ऐसा केस आया है, और अगर ऐसा आया है तो आप कैसे डील करते हैं उसको? बाकी अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन, मैं इसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं बस सिंस आई एम क्यूरियस टू नो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। आप जितनी नॉलेज है उसमें मुझे शेयर करना है, सबको हेल्प करेगी। ओके सो सर, ऐसा होता है कि ये सबके अपने खुद के पर्सनल बिलीव्स हैं कि कौन इन सुपर नेचुरल चीजों पे बिलीव करता है या नहीं करता है। आप नहीं करते हो? मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने शायद लाइफ में कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, तो मे बी इसलिए मैं नहीं करती। हो सकता है बहुत ऐसे लोग हो जिन्होंने सच में लाइफ में कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जिसकी वजह से दे बिलीव कि ऐसी भी चीजें होती हैं। बट आई वुड से कि मैंने, क्योंकि मैं साइकोलॉजी फील्ड में हूँ, मैंने बहुत सारे डिसऑर्डर्स और ये वाली चीजें देखी हैं। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ही क्लोज होते हैं, अगर मैं बोलूं कि यू नो इन सब चीजों से मतलब भूत प्रेत जैसी एक्टिविटीज से जो जैसे आपने ये भी बताया, हाँ बहुत ही क्लोज होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिया की ही बात करूं, तो उसमें क्या होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो हेलुसिनेशंस होते हैं, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो विजुअल हेलुसिनेशन उसको बोलते हैं। तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई देता है मैम? सर हाँ, मतलब जो पेशेंट्स है उनको दिखाई देता होगा, मतलब ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं। तो आपको बताते होंगे? हाँ, तो सर जैसे मैं बताती हूँ, एक पेशेंट थी तो वो बताती थी कि जो उसके घर पे जितनी भी पिक्चर्स थी या वॉल पेंटिंग्स होती थी, या जैसे उसके शायद ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर्स जो वॉल पे हैंग होती थी, तो बताती थी कि वो उसको हमेशा ऐसा फील होता था दैट दे आर टॉकिंग, उनकी लिपसिंग हो रही है। तो I'm getting goosebumps. So, Seriously. उसको ऐसा लगता था कि वो बात कर रही हैं, और अगर वो देख रही है उनको तो उनकी लिपसिंग हो रही है। तो सर बेसिकली अगर ये डिसऑर्डर होते हैं तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो यू नो जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं इन चीजों से। फॉर एग्जाम्पल किसी के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी के फियर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से कोई भी इंसान इंटरनली बहुत ही यू नो जिसको कहते हैं कि अपने आप में बंद हो जाता है, अपनी फीलिंग ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और हर इंडिविजुअल के लिए वो डिफरेंट होते हैं, कि कोई ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या किसी को बहुत ज्यादा लाइफ में केयर नहीं मिली। जैसे मैं अभी आपको और एक दो एग्जांपल देके बताऊंगी। तो उसको ऐसा लगता था कि वो लिपसिंग हो रही है, वो बात कर रही है। तो यूजुअली क्या होता था कि उस गर्ल को ज्यादातर उसके फ्रेंड्स नहीं थे, उसका बॉन्ड्स नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब क्योंकि थोड़ा सा वो बोलती थी कि वो ज्यादा खेलती नहीं थी, लोगों से बात नहीं करती थी, तो उसे बहुत ज्यादा पीयर एक्सेप्टेंस या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली। प्लस उसके घर वाले भी, क्योंकि थोड़ा सा वो विलेज बैकग्राउंड से थी, तो मतलब बहुत ज्यादा उनको ये रहता था बस तुम घर के काम करो एंड देन यू जस्ट गेट मैरिड और वो जाओ। तो कहीं ना कहीं मे बी उसने ऐसा इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि वो किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रही है घर में। तो वो कहती थी कि मेरे से मतलब लिपसिंग होती है, फोटो बात करती है। तो मतलब अब जो लोग आपने डील किया था? हाँ सर, आपने क्या काउंसिल किया था? हाँ। तो फिर आपने क्या, आप क्या समझाते हैं इसे? जैसे अगर सर कोई सुपर नेचुरल चीजों पे बिलीव करता है तो वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि भाई
कुछ भूत प्रेत है, कुछ तो हो रहा है, उसके दादा दादी की आत्मा आ गई है घर में जो उससे बात कर रही है, या ये सब चीजें। तो प्लस हम लोग उसको देखेंगे तो हम अलग साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि डिसऑर्डर कैसे हुआ, कहाँ से चीजें ट्रिगर हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो बेसिकली यही एक थिन लाइन है जो बेसिकली हमारे जो बिलीव्स हैं उसके हिसाब से मैटर करती है। अभी फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ गई है सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर, लेकिन उतनी भी नहीं है। अभी भी लोग प्रेफर टू गो टू बाबाज, टू गो टू दरगाज एंड ऑल, तो उनसे हीलिंग कराने में वो ज्यादा बिलीव करते हैं। और सर अगर लिटरली अगर ऐसा कुछ नहीं है सुपर नेचुरल बिलीव, और अगर बीमारी अनट्रीटेड है तो वो बढ़ेगी ही डे बाय डे। तो ऐसा भी कोई केस आया आपके पास जो कि ये दरगाह में या फिर बाबा के पास गए हो, सर बहुत, उसके बाद आपके पास आए हो? सर बहुत, और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। वो भी उनको किसी पड़ोसी ने बोल दिया या किसी रिलेटिव ने बोल दिया तो वो लोग हमारे पास आए हैं। वरना उनका बिलीफ यही होता है कि सर हमने देखे हैं लोगों के ताबीज वगैरह होते हैं, या कभी कभी लोग फर्स्ट विजिट में आते हैं तो उनको ये भी लगता है कि यहाँ कि हम आ गए बस क्योंकि हमें बोल दिया था, बाकी हम तो पहले वहां लेके जाएंगे बाबा जी के पास। बहुत सारे लोग, वो कौन सी जगह है, बालाजी, बालाजी कि वहाँ हम लेके जाएंगे, हनुमान जी का टेम्पल है। तो सर ये वाली चीजें बहुत कॉमन है, और मतलब लोग बातें करते हैं इन बारे में आके, और कुछ लोग सब चीजों से थक हार के फिर हमारे पास आते हैं। तो कहीं ट्रीट भी हुए हैं, कहीं का ट्रीटमेंट हुआ भी है इनवेज से? किन से सर? दरगाह से। और ये सर जिनका ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा तो वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो ठीक हो ऐसा जाएंगे। कोई केस आपने सुना? बाधाएं निकल जाएंगी तो फिर वो ठीक ही हो जाएंगे। आपने कभी सुना ऐसा कोई केस जो? सर नहीं, क्योंकि हमारे पास जितने भी आए हैं तो वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही आते हैं। और इज इट ट्रीटेबल? ये ट्रीट हो जाता है ये सब चीजें? सर ये चीजें जो होती हैं ये बेसिकली मेडिसिन के साथ कंटिन्यूएशन में रहती है। और काउंसलिंग आपकी भी चलती रहती है? वो काउंसलिंग चलती रहती है, प्लस मेडिसिन इन उसमें, मतलब अगर मैं सिर्फ बोलूं कि सिर्फ साइकोलॉजी का रोल होता है या साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है तो वो गलत है। ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें सर द साइकियाट्रिस्ट का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके ब्रेन में वो कामनेस आती है, थोड़ा रिलैक्सिंग वो रहते हैं, तो वो चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। 100% ठीक होता हो केस देखा आपने? नहीं सर, अगर दवाइयां छोड़ देते हैं तो चीजें वापस से ट्रिगर हो जाती हैं। So these medicine are for lifetime? Yes. Okay. लेकिन डोज चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी इनिशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिवियर है तो वो डोज जो है वो हाई डोज हो सकते हैं, फिर ग्रेजुअली अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो वो मिनिमाइज कर सकते हैं डोजेस को, लेकिन मतलब आप ये मान के चलिए कि ये चीजें चलती रहती हैं। ओके ओके मैम, इतने हैवी टॉपिक के बाद ये कि रिलेशनशिप जो हमने जेंजीज या फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में मैं एक रैपिड राउंड करूंगा आपसे मैम। आपको 1 लाइन में ही आपको जवाब देना है इसके अंदर मैम, ओके? और अगर आप इलेबोरेट करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। Double texting, is it desperate or normal? Double texting? Yes. So double texting is normal if the conversation is going in a positive manner. Okay. लेकिन if you are begging for the reply, then this can be a problem. Okay. Jealousy, love or insecurity? Jealousy is definitely an insecurity. Okay. So it is basically insecurity disguised as love. So because obviously if somebody loves someone, तो वो उसको मतलब जेलसी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay. तो इनसिक्योरिटी तो है कि you want that person to be just with you. Okay. Late replies, red flag? Late replies, red flags. So ये आजकल के टाइम की चीजें ही। हाँ सर, एग्जैक्टली, अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर द पर्सन कैन सेंस और फील कि लेट रिप्लाईज जो है वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, देन इट कैन बी अ अलार्मिंग सिचुएशन। अदरवाइज आई फील दैट इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। शेयरिंग पासवर्ड, ट्रस्ट और टॉक्सिसिटी? Sharing password is basically a toxicity.
Okay. Yes, definitely. Okay. Because if you love someone, if मैं you ट्रस्ट trust एक्सपेक्ट कर someone, रहा था मैम. no, no, no. Okay. तो फिर पासवर्ड और उसकी जरूरत नहीं होती है. Okay. 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 Yes, क्योंकि love is all about, having that confidence on your Yeah. partner, Okay. Okay. trust on your partner. Okay. Okay. So this is toxicity. Hmm. Shield password. Blocking after breakup, healing or immaturity. It's an aggressive healing Okay. because it's aggressive healing, or you can say कि somewhat extent पे it is a very immaturity. Okay. क्योंकि you are kind of, rather than confronting the situation, you are trying to distract the situation, या उसको Okay. आप cut off कर रहे हो. Okay. 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 ओके मैम, थैंक्स अ लॉट मैम. Thank you. काफी अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे बात हुई. बहुत रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप के बारे में, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट योर साइकोलॉजी शुड बी, और फिर तो हम भूत के टॉपिक तक भी आ गए अल्टीमेटली. ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक यू आज के एपिसोड के लिए. आपने यहाँ तक हमारा एपिसोड देखा, उसके लिए थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें. दिस इज मी, गौरव तिवारी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम येट अनदर एपिसोड. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.